Very good evening. I welcome all of you on behalf of our Pusa Road CP Study Circle. On today is a very important topic, that is the section 115 BBE and section 68 to 69D. And as usual on this subject, our very learned brother CA, now advocate Kapil Goyal ji with us. I welcome you, Kapil ji, Sure. and also Hare Krishna. welcome Khivani ji and Rajesh Jain ji and all the attendee on behalf of our study circle. And I'm also thankful once again to Kapil Bhai, who has given us a very earlier time within a week. As you know that on 28 Ninth. of 29 29th of December we have earlier webinar on the very important topic, and I request him ki please sir give us a new year time. So he accepted my invitation, and thank you sir, thank you very much for that one, and wish you all a very happy new year. And with this Thank one, you. over to Kapil Bhai. Thank you, Rajesh bhai. My dear, very respected and dear friend Rajesh bhai, my elder brother Shivani Saab, and every one of you, these participants who have joined this webinar, sir. See, Rajesh bhai, when we last met, that was my birthday on that day. Yes sir, yes sir. When I definitely become enriched, Khimani, I had lot of blessings of my friends on that day. And see, when we have some very important day, we wish and pray that we are with our very much important years and years. That was the purpose of that particular program. And though we discussed, happy birthday to you. I could not attend that. Sorry, Happy sir. birthday to you. God bless you. But that was a purpose, Khimani ji, why that seminar was kept. One of the purpose was that, and second was that black money law. The topic was black money law. on a sarcastic note, or when I say on a coincident note, he gave me the topic, Rajesh bhai, black money law. Correct. Yes. And Jensa was also there on that day. So today we are to discuss, and today is a new year. I'm very happy that I closed my new year this last year with this study circle with our good friends, and I'm opening my year with this particular forum. So that is a matter of proud privilege and a matter of a great honor and a, what you say, relishing for me, Rajesh bhai, and it makes me always nervous and conscious that I have a lot of duties towards you and all our audiences. I was thinking that now this is a very auspicious month when we all see, तो मेरे को मन करता है, I start my seminar with this bhajan, राम आएंगे तो कुटिया सजाऊंगी, जी मेरी सर, जी कुटिया सर, के भाग जाग जाएंगे, ये राम आएंगे. राम आएंगे. I want to just say Jai Shri Ram and Prabhu Ram, may Lord bless every one of us in this new year. And the nation is definitely, as a proud citizen, I am very happy. We all are very happy. This is a very beautiful time in this manner. Definitely feel heavily blessed, and this should continue, this momentum, as the beloved Prime Minister has said. So today is a topic on now coming to the topic and academic issues which we are to discuss today is relating to the section 115 BBE. On the other lighter side, Jensa, this topic or this section always tells me a different, always brings in my mind some very different kind of emotions. See, I was just reading this section before the seminar start, refreshing myself with my notes. So I thought, which is this particular chapter in which this particular section is there. Now that chapter is chapter 12. Now, Rajesh bhai, that chapter is chapter 12 in the Income Tax Act 1961. And that chapter 12 is headed Determination of Tax in Special Cases. Now that heading is very important. Now, if you want to know that what is section 115BB doing, you have to understand which is the residential address of this section, as we always understand. The residential address is chapter Income Tax Act main address, but in Income Tax Act chapter 12, the heading of the chapter is Determination of Tax in Certain Special Cases. Now, this is a very interesting chapter, Himani ji. Someday today my topic is 115BB, you know. If you read this particular chapter, ये start कहाँ से होता है, sir? It starts from section 110, it goes till 115 BBJ, tax on winnings from online games. ये भी बड़ा hot topic है, yes, online games. Yes. So हालांकि हमें कभी ऑनलाइन गेम्स का नहीं पता है, चलो अच्छा है, ये ठीक है, हम दूर ही हैं.
But this section, this chapter of income tax 12, chapter 12 special income ends, Jain Saab, with this section 115 BBJ, tax on winning from online games. Why I am Rajesh bhai saying all this? This has a very important purpose. You know, as an academician or as a practitioner, we understand that how the income is to be taxed, what income is to be taxed, then it comes what rate should be applied. See, there are two parts of the game. If for purposes of today's discussion, that what will be my total income, Jain Saab, and what will be the components of the total income. Am I there? The scope of total income is defined under section 4, the charging section, and section 5, which is scope of total income, if you note. That has to be read with section 4, section 5, and section 2, clause 45, the income definition of total income. What? Now, see, what is to be taxed, Khimani Sahab, under income, or what is taxable income? What is the manner of computation that is given in these 5 heads of taxation, which we popularly known as income from salary, income from house property, income from profit and gains of business and profession, income from capital gains, and income from other sources. Now you have to have this understanding in your mind when you read section 4, that is charging section. When you read section 5, it is scope of total income. When you read section 2, clause 45, that is definition of total income. When you read section 14, that is 5 heads of taxation, Khimani Sahab, which is salary, house property, business income, capital gains, other sources. Quickly. And each one of these, this head has chapters and charging provision. For example, salary head, there is section 15. Business head, there is very important section charging, section 28. This capital gain, section 45. Other sources 56, and house property, section 22, I guess. So, Rajesh bhai, why I'm saying all this? See, generally it comes to our mind, can there be an income which remains headless income? Can there be an income which is headless? The word used is headless income, which is not classified in these 5 heads, which is headless. Headless का मतलब सर के बिना नहीं. Headless का मतलब income tax act के अंदर किसी head में नहीं आ रहा है. मतलब the income which is not classified under any 5 heads, and it is now income under section 68 to 69D. That is the different kind of unexplained income. Now, kindly note, this income under section 68, etc., falls under which particular chapter? This is also interesting, Khimani ji. Today, I'm trying to make my discussion slightly innovative in the sense that which I have not discussed. Although this topic in last Corona years we have debated, but I am today going to present it in some different manner. So you know, chapter 6 is the chapter which deals with, which contains 68, 69, etc. Uska heading kya hai chapter 6 ka? Aggregation of income. Aggregation of income. The word used is Aggregation of income. Yes. So you have to understand section 68, etc., which is falling under 115BB, is contained in chapter 6. Chapter 6 is headed aggregation of income and set off of loss. I am not today with set off of loss. I am on aggregation of income. Now, determination of tax in special cases in chapter 12, 115BB. See, now when you go to this chapter 6, Khimani ji, section 68, etc., हम जब पहुंचते हैं उसके बाद तो हमें पहले जितने भी 67 सेक्शन है वो पढ़ने पड़ेंगे, तभी 68 पे जाएंगे. ऐसा होगा कि कोई आदमी सीधा छलांग मारे और 68 पे जंप मार जाए. अरे ये हमारे इनकम टैक्स में होता है सर. हाँ, इनकम टैक्स. अरे साहब, इनकम टैक्स की पैराशूट लैंडिंग, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर रेवेन्यू फ्रेंड्स, मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट they don't consult first sections. वो कहते हैं आपका इनकम स्टेट में 68 में आ गया और 115BB लग गया. Is it the way? That is I am taking at the head on point. वो पहले सेक्शन का आ गए, पहले वो टोटल इनकम 5 है, वो सब देखना पड़ेगा आपको सर. So you can't say that every income by default comes under 68 read with 115BB. That cannot be the way to read the law. If I am there, Jain sir. So we have to understand that Income Tax Act is made in a very different kind of a manner, in this manner that you have 5 normal heads of taxation. Then you have the 68, etc. Then you have 115BB, which is rate of tax. Now you can't make a parachute landing at 115BB, then make a reverse analysis. कि हम तो 115BB में पहले जाएंगे और उल्टा चलेंगे. उल्टा कैसे चलेंगे सर? सीधा चलना पड़ेगा ना, उल्टा कैसे चला जाएगा? और वो उल्टा चलने का एक भावना क्या रहती है? देखिए आप, वही बात जो हम शुरू में कर रहे थे, विनम्रता से बोल रहे हैं, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी एंड ऑल ह्यूमिलिटी, कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे को सर, व्हेन वी सी कि व्हेन हाउ मच मैक्सिमम टैक्स कैन बी इम्पोज्ड एंड इन मोस्ट इजी मैनर एंड कन्वीनियंट मैनर,
I'm sorry. Again, I have already said my with due respect in bold cap 24 or 40 wala word. Now, if you say that, Mr. Goyal, there is a provision in the Income Tax Act which has this magical power in it, that if you bring some income within it, then your rate of tax will be 60% and interest will be separate and penalty will be separate, and then the tax which will come which will outcross the income amount. मतलब जो कंडीशन होगा उससे ज्यादा का डिमांड निकल जाएगा. तो खिवानी साहब के पास जो नाश्ता आया वो हमें भी मिल रहा है. बिल्कुल मिलेगा. राधे राधे. सॉरी. तो मैं ये कह रहा था, कमिंग बैक टू माय पॉइंट. So if Rajesh bhai, somebody wants to say is there any provision which can be conveniently applied and in which you make the taxation like this, that your demand is more than income. Correct. Demand is exceeding the income. So the person who has to make the assessment in a normal sense is now what is happening or happens. He is more enamored by this section or infatuated कि साहब छोड़िए ना, हम 115 BBE ही लगा देते. वो मोह इन्फेक्चुएशन क्या, इन्फेक्शन बोल रहा था, वर्ड गलत बोल गया. इन्फेक्चुएशन, वो जो अफेक्शन एक्चुअली इन्फेक्चुएशन अफेक्शन भी नहीं है. हाँ, तो दोनों ही वर्ड मैंने बोल दिए सर. तो वो जो है उसका कारण एक सबसे बड़ा यही है कि कैसे डिमांड ज्यादा से ज्यादा निकलेगी और कैसे एसएससी को ऐसा डिमांड बनाया जाएगा जिसमें रेवेन्यू ही सिर्फ डिमांड ही नजर आएगी. दिक्कत की बात ये है सर, आप कहेंगे some people can have thoughts in the this favor of this section. I have always said, Rajesh bhai, this section to my mind after this amendment of 2016 when 30% rate was doubled Jain Saab in 60%. That is a serious step which was done in that time. And due to that, assessment year 17-18, lot many cases which are even today hanging in appeal, first appeal, and some in ITAT, where demonetization happened. You remember when 8th November 2016, demonetization was announced. And on Pranab Mukherjee Saab on this passed this amendment in 115 BBE in what you say, December 2016, Rajesh bhai. Rate of 30% was increased to 60% on 15 December 2016. You can note this cutoff date. In 2016-17 financial year, Jain Saab, on 15 December 2016, the rate was doubled. And there was some fervor that people who, Khivani ji, when this rate was doubled, just I am recalling in hindsight, बड़ा interesting था इसका background 60% होने का. I will not say anything मतलब like that कि it is due to some particular opinions, but there was a particular set of understanding that which government said कि नहीं, अभी लोग 115 BB में आकर टैक्स दे देंगे 30%, तो ये तो एक तरीका हो जाएगा कि आपने पैसा अपना शुद्ध कर लिया, यू क्लीन योरसेल्फ. तो 30% में कुछ ऐसा होना चाहिए राजेश भाई कि उनको लगा कि पेनल्टी इनबिल्ट होना चाहिए, इसलिए 30 को 60 करा उन्होंने. That time Mr. Jaitley Saab was the late Jaitley Saab was the finance minister of the country. So now, after 2016, due to demonetization, this rate was increased. I always say, even today, this rate is remaining 60%. And demonetization to khatam ho gaya, Khivani ji, kab ka? And always this question comes in my mind when I read this section. I have to deal with it. This question remains as an academic, humble reader in my mind, sir. You will note. What is I'll just bring one thing to your knowledge. I received an order very recently of a commissioner appeals. उसमें 1,73,00,000 की एडिशन थी, 60% 115 BBE में लगाया हुआ था डिमोनेटाइजेशन का. Commissioner has passed an order ex parte, none attended, no submissions made. He has reduced it कि जब ये जो पैसा जमा कराया 15 दिसंबर से पहले जमा कराया, इसलिए इसमें 30% लगेगा. बहुत अच्छी बात है. ये तो आपको पार्टी देनी, और विदाउट एनी सबमिशंस, ये आपको हमें पार्टी देनी चाहिए. और आप बड़े लकी और वो सीआईटीपी बड़े समझदार, बड़े विद्वान और ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर सब हो जाएं. मैं पार्टी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने नहीं किया, वो मेरे पास एक्स पार्टी के बाद आया है. अब ट्रिब्यूनल में जा रहा है. नहीं, हमारी पार्टी एक्री होगी. मैं सब आपके बताते ही, हम तो बड़े लालची मैं पार्टी के लिए तब तैयार रहते हैं. नहीं, इसका अद्भुत भाव समझिए आप. भाव जैसे वो भाव राम आएंगे में ना. See, I am so happy and glad to note this point which you have shared very rightly, and I am very happy to note, Rajesh bhai. See, this is justice.
Had this become but it is exceptional. I am telling you, it's rare. 90% of cases where we have seen 115BB is applied, we have seen the trend of the income tax department and mindset is different. Yes. But this, what you have told ki Goel Saab jo aapne bataya, and you are, I have to also raise this bullet point that lot many cases in AY 17-18 when search happened before 8 December 2016 demonetization date and you surrendered it, or the amount pertains to prior to demonetization, and even that for period the amount, although this is in financial year 16-17, but the period is before demonetization, but the rate is applied is 60%. Can it be applied, Rajesh bhai? It cannot be. So although there is, I'm telling you, Shivani, maybe there is a catch here. One Kerala High Court decision has gone against. It said it covers full entire year and it is not, can be bifurcated. But there are series of ITAT orders which our tribunal has rightly taken this stand. And I agree with that view. I believe that view is more correct. Where there is there are decisions, Rajesh bhai, of various criminals across the country. Maybe Jabalpur bench, maybe Indore bench, Surat bench. I have read, or 4 benches I have noted. Jaipur bench. So all these decisions, I will just take it when I will come in. So what this decision say in this, the leading order is this Jabalpur bench order, Kivanji, ACIT versus Sandeep Kumar Jain. And this order is 31st October 2022 in Jabalpur bench. ACIT versus Sandeep Kumar Jain, Jabalpur ITAT, that if the amount, the transaction pertains to demonetization date, the rate which will be applied will be 30%, not 60%. Yes. So that is Jabalpur bench, and which is being followed later on by Surat ITAT, then Indore ITAT, and then of lately Jaipur ITAT, other bench. So what you got as a relief from the CIT appeal, that's the right position. But I'm very happy that CIT appeal in ex parte order has done it. That's very sweet. That is so sweet. I can't tell you. I'm so happy to note all this. Maybe this becomes a trend. Then 115BB. At least see, when you see this section today, sir, supposingly, now this section is being applied, Jain Saab, in years which are being assessed under 148 after, let us say 17, 18, 18, 19, Rajesh bhai, 1920. Now 1920 cases which are reopened in March 2023. Now 2021 will be reopened in this cycle. That is 3-year cycle, na? And 6 year. So 6 year will be 17, 18. तो अभी जो नया साल में reopen होगा 31 मार्च 24 को जो 6 साल खत्म हो रहा है वो, that is AY 17, 18 and AY 19, 20, I believe. Sorry. In 21. AY 2021 will be the 3 years within 3 year wala, and AY 17, 18 will be within 6 year wala. So in both these years, this 115BBE, if your case will get reopened and something is added under 68 to 69D, Kimaneji, then 115BBE may follow like a shadow. But I have a point here to tell you, submit. As I was stating, if you read the chapter heading, chapter 12, as I said, determination, the word used is determination. Now, if you have, whatever friends might have this section 115BBE, I want to just flag one very important word which is at the outset and which has not gone appreciated anyway, Rajesh ji. This is a very critical word. This word says, this 115BBE, Rajesh ji, Jain Saab, is a very short section. It says sub-2 subsection. I am reading from 115BBE subsection 1 clause B, Rajesh bhai. Now, Agrawal Saab, kya 115BBE, what it says? It says, subsection 1, I am reading, where the total income of an assessee, clause A says, includes any income referred to in section 68, 69, etc. and reflected in the return of income furnished under 139. Now I take a pause. First clause says कि आपने रिटर्न भरा assessee ने किवाने जी और उसमें उसने खुद स्वयं तरीके से 68 का इनकम ऑफर कर दिया. मतलब this section somewhere says कि अगर assessee को खुद को, I don't know, ऐसा कौन सा केस होता है जहां assessee अपने आप को चाहेगा कि मैं इस ये जो मेरे लिए 7.5 की तरह ये वाला सेक्शन, शनि भगवान की जय हो, ओम सम शनिचराय नमः, उसमें कहेगा आइए हमारे ऊपर लग जाइए साहब, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा मुझे ये आज तक एक क्लॉज मुझे समझ में नहीं आता. अब पता नहीं ऐसा होता होगा कि कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं हम अपना रिटर्न में आगे से दिखाएंगे, हमें तो 115BB को ही प्यार करना है, तो करे, तो जो है तो उनको ठीक है सर, मेरा प्रणाम. बी पॉइंट. अब मैं बी पे हूं प्रैक्टिकली, जो एओ साहब लगा रहे हैं उसका देखिए क्या है खिवाड़ी जी लैंग्वेज, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी determined by the AO includes. Now, what used is, Rajesh ji, determine. Are you noting this word, determine? The word determine means there has to be a proper. Now, go to Black Law Dictionary. What is the meaning of word determine? Chapter का heading में भी word determine लिखा हुआ है, section में भी word determine लिखा हुआ है.
So can we say my first question, very simple question, मैं complex नहीं कर रहा. पहला क्वेश्चन खिवानी जी ये है इस बात से डिटरमाइन करिए कि क्या ये सेक्शन ऐसे लग सकता है जैसे लग रहा है कि जैसे आपने असेसमेंट बनाया अग्रवाल साहब और उसमें ऑर्डर पास कर दिया, 115 बीबी का भी नामो निशान नहीं है ऑर्डर में, छोड़िए शो कॉज नोटिस की तो बात, और सिर्फ डिमांड नोटिस जो निकलता है ITNS जो बनता है उसके अंदर कंप्यूटेशन करते वक्त 115 बीबी लिखा हुआ. मतलब आई से इन इंग्लिश, if there is a assessment done in the assessment order entire, there is no whisper of 115 BBE. In the accompanying demand notice computation sheet, there is reference to this calculation part. Now, इसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक क्लरिकल एक्ट हो गया सेक्शन लगना इतना भारी. पर क्या सेक्शन ऐसा बोलता है कि कैन इट बी मिनिस्टेरियल एक्ट? कैन इट बी डन in this light-hearted fashion that it is made part only of computation sheet ITNS? Without anything in the assessment order, without any show cause to the assessee, without any confrontation to the taxpayer, कि आप सीधा डिमांड नोटिस में निकाल दो उसको, सीधा कंप्यूटेशन में लगा दो. नहीं हो सकता. तो सही तो हो ही रहा है आज से. जब से मुझे बताइए कौन सा. सी देयर इज अ पॉइंट हियर. इफ यू आर अप्लाइंग 115 BBE, आर यू गिविंग प्रायर शो कॉज नोटिस ऑन दिस पॉइंट? देन आर यू सीकिंग सॉलिसिटिंग assessee's views कि why not it should not be applied? And thirdly, when you are applying it, are you giving proper determination in the order, assessment order, or not? That is why that is only when determination can be applied. या तो सर सॉरी मुझे करेक्ट करिएगा, मेरी दंडता को खिवानी जी, आप लोग बड़े हैं. नहीं बिल्कुल ठीक है. ये मेरे को या तो मैं सेक्शन बिल्कुल ही गलत पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. डिटरमाइन वर्ड का कोई मतलब ही नहीं इसका मतलब. हाँ. मतलब उस चैप्टर हेडिंग में भी डिटरमिनेशन गलत लिखा हुआ है और इसमें भी गलत लिखा हुआ है. दोनों में गलत है. ये क्लरिकल एक्ट है, ये प्रैक्टिकली तो यही बता रही है. और सोचिए राजेश जी कि ये सेक्शन इतना लाइटली लगता है जिसकी पावर इतनी हाई है, हाई वोल्टेज. मतलब सोचिए जैसे किसी को 440 वॉट का करंट लग रहा है, ये वो सेक्शन है. एक आदमी का क्या हुआ तिवारी जी, लाइटर से बताता हूँ. देखिए क्या हुआ, एक एसएससी है बेचारा, वो कमीशन एजेंट का काम करता है. उसको कमीशन मिलती है राजेश जी बहुत कम, कच्चा आड़ती है पक्का आड़ती नहीं होती, वो आड़ती है टाइप. अब सोचिए कि उसकी सेल करी उसने कैश में, सारा काम कैश करता है. ठीक है, हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट में अभी तक कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो जहां ऐसा कुछ इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हो कि कैश बिजनेस टोटली प्रोहिबिटेड है. 48(3) वगैरह है, 269 ST है, 269 SS है, वो अपनी जगह है. बट कैश बिजनेस एज सच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड. और आप कैश बिजनेस को भी अगर इनकम एसेस करेंगे तो खिवानी जी सेक्शन कौन सा होगा? 28 होगा, बिजनेस हेड होगा, मैं गलत नहीं हूं तो. और उसमें आप मेरी सेक्शन 28 के इनकम खर्चे वर्चे अलाउ करके करेंगे. उसमें इलीगल बिजनेस भी आता है. कोर्ट तो यहां तक कहती हैं कि बिजनेस हेड इंक्लूड्स लीगल बिजनेस आल्सो एंड इलीगल बिजनेस आल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes. So appreciate with me कि एक जैन साहब एक आदमी का बिजनेस है, वो कैश में पूरा, मैं कैश में करता हूं, मेरी सेल सब कुछ कैश में, और मैं कमीशन एजेंट हूं, मेरे को कुछ भी नहीं, 1 पैसा 2 पैसा बचना. अब डिपार्टमेंट उस आदमी के कैश को जो वो बैंक में जमा करा देता है, या मान लीजिए जो उसकी किताबों में आता है उस पर 68 लगा देता है या 69A लगा देता है. अब इसमें भी डाउट होता है. अभी आता हूं थोड़ी देर में कि 68 69 को आप जब चूज करते हैं तो ये आप ऐसे चूज करते हैं जैसे हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें हाथ लगाते हैं कि रखिए किस पे आपका हाथ जाता है वो वही अच्छा हो जाता है. जैसे मान लीजिए बाकी बिहारी ने किसी चीज पे हाथ रखा, वो तो सोना बन जाती है, वो तो खुद ही. जैसे अहिल्या को तार दिया उन्होंने, पत्थर करा राम जी ने, तो ऐसा कुछ हुआ कि 68 69 आपने टच करा, वो ऐसे ही हो गया. अभी उस पर आ रहे हैं. एनी हाउ, मेरा कहना कहता है कि आदमी कैश का बिजनेस कर रहा है राजेश भाई, उसमें उसका कमीशन एजेंट बड़ा लिमिटेड है, और उस पे मान लीजिए उसकी ग्रॉस टर्नओवर पे रिसीट्स पे 68 69 लग जाए और साथ में 115 BBE का उसको गुलदस्ता मिल जाए, तो वो गुलदस्ता एटम बम से कम होगा? वो बचेगा आदमी, उसको क्या हो सकता है उसके साथ? उसकी डिमांड आ जाएगी, उसने जिंदगी में इतने पैसे कभी कमाए नहीं होंगे. नेटवर्क नहीं आएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको. अरे वो कैफे कॉफी का इंसान भूल गए हम आपसे कैसे. नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बट लंबा केस है. हाँ सर. बट 263 किया गया कि इसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट का वो लाइसेंस ही है, तो इस परचेजिंग एंटायरली फ्रॉम द मार्केट इन कैश. सस्पेंड ये 17-18 2 लाख की लिमिट से पहले. तो उसका खोला गया, 263 किया गया, आप कैश पे परचेज कर रहे हो, एडिशन कर रहे हैं 68 में. मैं you are opening under 48(3) cash paid, then why are you making addition under 68? And no show cause notice and proceeding are launched under 68. और 68 का कैश क्रेडिट क्या हुआ? खर्चे से क्रेडिट कहाँ पैदा हुआ? क्या क्रेडिट कहाँ पैदा हुआ? अब डिमांड निकल आई 15 करोड़, पार्टी की नेटवर्थ आ रही है 8 करोड़.
क्या करेगा? पैसे कमाए होंगे कभी क्या सर? अब आइए इसके दूसरे भाव, सॉरी राजेश भाई, सेमिनार का एक और भाव है आज का इसका पॉइंट। 115 बीबी सेक्शन इनकम टैक्स में ही है, एक्ट में ही। मैंने इसलिए सारी वो कहानी बताई थी शुरू में, चैप्टर 12 से पहले चैप्टर 6, 5 हेड ऑफ टैक्सेशन। इनकम टैक्स एक्ट का पर्पस अल्टीमेटली इनकम पे टैक्स लेना है। ऐसा कोई पर्पस है इनकम टैक्स एक्ट का कि इनकम से भी ज्यादा टैक्स लेना है? ये भी कम एक से कम ये सही बात। होना तो नहीं चाहिए, अरे पर कमाल हो है। रहा है। अरे सेक्शन ही यही है। ये तो लगता है इसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है जिसपे आपने लगा दिया, क्योंकि उतना ब्याज बन जाता है 10-20%, 60% तो रेट इसमें है ही ऑटोमेटिक। बिल्कुल ठीक बात। डिपार्टमेंट कह रहा है सर हम तो इस सेक्शन को असेसमेंट ऑर्डर का भी हिस्सा नहीं बनाएंगे, बना देते हैं कुछ असेसिंग ऑफिसर, कहते हैं हमारी दरिया दिल्ली हमें बड़े अच्छे हैं, बट हमारा काम तो सिर्फ इसको डिमांड नोटिस में दिखाना है। भैया तुम्हारा अगर आपका काम इसको डिमांड नोटिस में लगाना है तो ऐसे तो क्या तो इस सेक्शन के साथ जस्टिस हो रहा है डिटरमाइन वर्ड के साथ जो मैंने फ्लैग किया सर। और क्या पूरे इनकम टैक्स एक्ट में आप जब रियल इनकम कंसेप्ट की थ्योरी लेकर चलते हैं और एक जैसे प्रोपोर्शनेट टैक्स की बात करते हैं, राजेश जी जब लास्ट टाइम भी जब सेमिनार ब्लैक मनी लॉ का किया तो मैंने डॉक्ट्राइन पे एम्फेसाइज किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आई एम जी। शिवानी जी, यू मे नोट इट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और आज के सेमिनार का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप किसी आदमी को 68, 69 और 115 बीबीई में टैक्स करते हैं तो उस समय डिपार्टमेंट डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो कभी याद ही नहीं रहता उनको, वैसे ही डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, पता नहीं, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहां से निकला? संविधान के आर्टिकल 14 से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है हेल्दी, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट में भी लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, खासकर जो सेक्शन पेनल सेक्शन है। अब आपको पता है 115 बीबी के आप इसको सिर्फ टैक्स रेट मानते हो, इसमें पीनल टैक्स भी इंक्लूडेड है। वो जो 30% एडिशनल हुआ था वो पीनल है, आप समझ रहे हैं शिवानी जी? करेक्ट। तो आप ऐसे सेक्शन, सॉरी अब मान लिया आप सोचिए कि आपने इस प्रोपोर्शनलिटी का नियम क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का नियम ये है कि आप किसी आदमी को उतना ही दंड देंगे जितना उसका प्रोपोर्शनल एक्ट होगा। अब भैया किसी ने अगर कोई सिर्फ ट्रांजेक्शन कैश में कर ली या सर्च में सिर्फ मिल गई आपको, उस बात से सर्वे में मिल गया और उसने सरेंडर कर दिया, पर वो नेचर ऑफ इनकम तो उसका उतना ही है इन अमाउंट और उस पर उसने मुनाफा लिमिटेड कमाया है। अब आप उसको जबरदस्ती, जब वो 68 में फिट नहीं हो रहा, जैसे किसी को कोई कपड़े फिट नहीं हो रहे, आप जबरदस्ती उसको कपड़े पहना रहे हो ताकि वो उसी कपड़ों में आ जाए। सबको टेडी बियर की ड्रेस पहना देते, सॉरी टेडी बियर अच्छा है, टेडी बियर की ड्रेस इसलिए बोल रहा हूं मैं, हालांकि 115 बीबी टेडी बियर नहीं है। आप कहेंगे गोयल साहब 115 बीबी को क्यों टेडी बियर से कंपेयर कर रहे हो आप? ये तो ये वो ठीक था आपका शनि भगवान वाला एग्जांपल 7.5 वाला। तो कहने का मतलब ये राजेश जी कि जो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है कि आप उतना ही टैक्स लेंगे जो लेजिटिमेट, रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट होगा, वो ये प्रिंसिपल सेक्शन कहीं फॉलो नहीं कर पा रहा। ये बहुत जगह इनकम टैक्स में लगाया भी हुआ है। फॉर एग्जांपल टीडीएस की पेनल्टी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ टीडीएस, पहले तो अनलिमिटेड था, फिर उसको I always चेंज किया था। appreciate your participation, Shivani ji. That's why you are very matured and learned. And you rightly say in income tax law, Hindustan Steel Limited 83 ITR 26 जो 3 judge bench का order है कि that Yes. can't impose penalties for even venial defect and there has to be proportionate concept of punishment. Correct. Now this section is a kind of a punishment. I don't know. See in income tax law, I don't know. See you go to that section, इसके आगे पीछे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, वैसी बात चल रही है तो बता रहा हूँ। आप उसमें देखिए कितना टैक्स रेट है जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और गेम्स है सर, उसमें कितना टैक्स रेट है? 30%. फ्लैट रेट 30%. 30% है ना? तो आप सोचिए 30. लॉटरी और गैम्बलिंग की इनकम राजेश भाई ज्यादा बेटर है गवर्नमेंट के लिए, सॉरी लेजिस्लेचर के लिए, और 68 की इनकम उससे भी घटिया इनकम है। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब उसमें 60 कैसे लग गया? मतलब इसका मतलब 68 की इनकम के अंदर, ये कौन पूछ रहे? वंदना शारदा जी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड 83 ITR 26 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दैट प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। और भी नोट करना है आपका इंटरेस्ट है वंदना जी, एक्सेल क्रॉप लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सेल क्रॉप, दैट्स ए कंपटीशन लॉ पेनल्टी केस बाय जस्टिस A.K. सीकरी एंड नारिमा रमणा साहब। एक्सेल क्रॉप लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मैंने लास्ट टाइम ब्लैक मनी लॉ वाले में भी बोले थे। एक्सेल क्रॉप और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। Anyhow, Shivani ji, I was on this point that whether this income of section 68 is more heinous and vulnerable or what you say bad as compared to lottery and gambling. As far as morality is concerned, although we have nothing to do with morality, I am not a moral teacher, but I am just comparing as a student of law that you have a section in the Income Tax Act where winning from gambling and is even today taxed at 30%. आप लोगों ने confirm किया
और ये एक 68 का इनकम 60% प्लस, 60% नहीं है उसका, लैंडिंग रेट तो 100% से ऊपर है। तो ये कैसे हो रहा है कि सर 68 की किसी भी इनकम के ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि उसमें इतना ज्यादा गंदा गुण है कि उसको तो बस उस पूरी इनकम को कन्फिस्केट कर लिया जाए। सी when you apply 100 more than 100% rate, this kind of rate, it's a confiscatory law. Then confiscation means you confiscate those proceeds indirectly. Now am I there, sir? So can you make such kind of law when you confiscate 68 type of an income, which section is again based on subjective satisfaction of an AO, and we have seen, as you were telling also, and we daily see that these sections are applied in a haywire manner. Correct. Haywire का मतलब क्या होता है भैया? अब मैं I just tell you my just small experience, Kiwani ji, 2-3 cases which I went in High Court. Although we gone on natural justice grounds and other grounds, but I'm just submitting. I recall a case where what happened, sir, in SSC gave some loan. He was lender in some other financial year, earlier financial year, and in the concerned financial year, the loan was come back, repaid to him. In the year in which loan was repaid to him, the assessing officer applied section 69 and 115BB. Now kindly read section 69. It says when you have made investment, and that too outside the books. Now can when you receive back your loan which you have given in earlier year, by any sermon of reasoning can section 69 be applied that you have made unaccounted investment outside books? I repeat, when I am getting my loan money which I have given in earlier year repaid in the particular year, can section 69 be applied by any sense of reasoning that it is my investment and which is outside my books of account? And due to that 115BB is applied as a matter of what you say natural concomitant, as a matter of what you say Kiwani ji, as a matter of what you say ना कि जहां 68 लगेगा वहां 115BB ही तो लगना ही लगना है। अभी 69 लगेगा तो 115BB लगना है, 69C लगना है। तो this is one illustration which I find is a very bizarre. Second point I find, Kiwani ji, what interestingly, in GST type of cases which is happening on fake invoice, and this is a very serious example. You know, Department of Income Tax Department, I don't know, Rajesh Bhai ne ek seminar रखवाया था physical भी. I spoke on fake invoices under GST, implication under income tax. So I recall, and today also what department has done in hundreds and thousands of cases, and I'm going to take this case today. See, if I'm a trader, sir, or a manufacturer, I take some raw material, Kiwani ji, from some people who are suppliers of me, from whom I buy. They are part of my books. They are recorded in the P&L account debit side, and they are accounted purchases. Department say these purchases are suspect purchases, tainted purchases, because GST has given us input that these suppliers, जो assessee का supplier है, these suppliers are probably fake suppliers, or these are not in good list. Now, what income? I'm not concerned about GST. I don't know what is GST. मेरे को income tax ही नहीं पता. मैं GST का बात कैसे कह सकता हूँ? अभी income tax क्या कह रहा है सर? Income tax says to disallow that purchases who will not use section 37. We will not increase business income. What we will do? We will apply section 69 capital C. Sir, how can 69C be applied like this? Now, 69 capital C is applicable when there is an expenditure and the source of that expenditure is not explained. Now, for recorded accounted purchases, which are part of my books, disclosed accounted recorded purchases, without invoking section 37, without disallowing the purchase under the PGBP head, can 69C be invoked and then 115BB be applied? Now, see, as you are saying, one assessee, lucky assessee. I also talk about that assessee who was partly lucky and then partly unlucky. One of these cases, what Kiwani ji, what was Agrawal Sahab has also come back. Agrawal Sahab, in one of the case, what happened, an assessee was there. उसने कुछ परचेज किया था, उस परचेज को डिपार्टमेंट कहता है कि साहब ये हमारे हिसाब से परचेज ठीक नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, ये आपने ठीक नहीं परचेज किया, ये परचेज तो हमको गड़बड़ लगता है. लेट अस से डिपार्टमेंट कहता है ये आपने जीएसटी में बताया, इनपुट्स आया जीएसटी डिपार्टमेंट से, दीस आर फेक इनवॉइसेस और फेक सप्लाई. यू नो द कांसेप्ट फेक सप्लायर एंड फेक इनवॉइसेस, अग्रवाल साहब. सो उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, असेसिंग ऑफिसर ने कहा मेरे को खर्चा डिसअलाउ करना है परचेज का. दैट असेसिंग ऑफिसर किवानी जी वाज रैशनल. जब असेसमेंट 143.3 का हुआ अग्नि परीक्षा, assessee got succeeded in the Agni Pariksha 143.3. AO, while disallowing the purchases and that kind, did not apply 69C rightly, and 115BB only disallowed the purchase under 37. Now, Commissioner Saab का निगाह पड़ गया, तीसरा निगाह, third eye of Commissioner Saab under 263. That I say third eye. That's not bull's eye I am saying, that's a third eye. जैसे भगवान शिव का third eye है.
तो थर्ड आई ऑफ CIT साहब अंडर 263 went on to the assessment and CIT साहब said what? CIT साहब said AO has been too liberal with the assessee. He did not invoke section 69C to disallow this purchases 115 BBE. Not CIT साहब का मोह 69C से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 115 BBE के गंगा सागर पे पहुंचना है और ये मानसरोवर क्लास पे तो 69C से जाना पड़ेगा। सही बात। तो CIT साहब ने कहा कि ये AO साहब ने तो बहुत अच्छा नहीं किया, ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ, एरनियस एंड प्रेजुडिशियल ऑर्डर है ये। और 263 सेक्शन का शो कॉज आया एसएससी को बड़ा प्यार से, कि उसमें लिखा कि AO साहब ने जो परचेज डिसअलाउ किया 37 में सब गलत किया है, मतलब उन्होंने आपका साथ लिबरल हो गया, आपका दोस्ती हो गया होगा। अभी आपको 69C और 115B, देखो राजेश भाई कैसे मुस्कुरा रहे हैं, 115B ये दोस्ती करने में विश्वास रखते हैं, ये मित्र है ना भगवान के बिहारी के, सॉरी राजेश भाई। तो 115 BBE का नोटिस दे दिया 263 के अंदर। अब एक और बात है दादा, शिवानी जी मैं दादा कह के बोलता हूं तो मेरा मतलब आप समझते हैं 115 BBE। अब ये सोचिए 115 BBE बेबी होता है ना, 115 BBE जहां मैं डिटरमाइंड वर्ड पढ़ रहा था, डिटरमाइंड बाय द AO लिखा है। ये डोमेन किसका है? ये अधिकार कमिश्नर का है CIT का 263 में इस बात को चेक करने का कि पहली बार की 115 BBE लगेगा या AO का है? AO का है। तो सर ये सेक्शन क्यों बने सारे? और AO की परिभाषा इनकम टैक्स एक्ट में मेरे नहीं बना, सॉरी सर राजेश भाई सेक्शन खोलिए इनकम टैक्स का, असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 2 क्लॉज 7A, उसमें AO वर्ड डिफाइंड है। अभी हमारे को बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं करने की जरूरत। सेक्शन 2 क्लॉज 7A में AO का परिभाषा, जिसमें एटलीस्ट कमिश्नर साहब AO नहीं है। आप कहेंगे कपिल जी आप तो ये बड़ा अजीब सा पॉइंट बता रही हैं, तो ये डिपार्टमेंट को नहीं पता क्या? मेरे को क्या, मैं तो सेक्शन पढ़ रहा हूं सर, मुझे क्या पता? मेरे को तो आपने जो लिमिटेड ज्ञान सिखाया राजेश भाई, मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं। अब in this circumstance, can CIT in 263 proceeding, who is not my AO, can introduce and induct 115 BBE? No, not at all. Sorry, sir, I don't know how is it happening. And that is 1,000 crore show cause has come into my client in last few months. उसके साथ क्या थी खिवानी जी प्रॉब्लम? अच्छा नहीं, और उसको कंप्लीट करने से पहले गुजरात हाईकोर्ट का ये लीडिंग ऑर्डर नोट कर लीजिए, दो ऑर्डर्स जो बिल्कुल डायरेक्टली लग रहे हैं राजेश भाई इसी प्रॉब्लम पे, कि रिकॉर्डेड परचेज पे ना तो 69C लग सकता, ना 115 BBE लग सकता, और ना CIT साहब 263 कर सकते। मैं रिपीट करूं, गुजरात हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2023 को इस लैंडमार्क फैसले में प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शशिकांत भाव, आप नोट कर ले राजेश भाई सबके लिए, PCIT वर्सेस शशिकांत भावजी भाई राजपरिया, शशिकांत भावजी भाई, शशिकांत भावजी भाई, मैं लिख देता हूं सबके लिए ताकि सब इसको नोट कर ले। गुजरात हाईकोर्ट, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूं सर, गुजरात हाईकोर्ट PCIT वर्सेस शशिकांत भावजी भाई, हाँ, अगर मेरे से कोई भावजी भाई। ये सर्दी के अंदर हमें टाइप करने की भी आदत कम होगी ना सर, राजपरिया आई एम सॉरी। 28 अगस्त 2000, नहीं इंपॉर्टेंट जजमेंट है सर, बताना जरूरी था आज के लिए। ये जजमेंट में जस्टिस कार्य, इस जजमेंट को बताने के दो भाव हैं कि डिपार्टमेंट ने 69C जबरदस्ती और 115 BBE 263 के द्वारा और वैसे भी बहुत जगह लगाने का कोशिश की, सब गलत है। कोर्ट का ओपिनियन इसमें तो ये था खिवानी जी, उसमें AO वाली बात की वजह से नहीं कहा उन्होंने कहा कि 69C कैन नॉट अप्लाई टू रिकॉर्डेड परचेज, इट अप्लाई टू अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर। शेयर करना वो जो लिखा था आपने। सर मैंने भेज दिया, लिख दिया नीचे। नीचे आप चैट में देख लो ना भाई, चैट बॉक्स में देख लो। नहीं मैं बता देता हूँ खिवानी जी आपके लिए सर, ये क्या ये लिखा हुआ है, प्रिंसिपल कमिश्नर शशिकांत भावजी भाई सर। तो ये इस जजमेंट को बताने का राजेश भाई, सोचिए इतने केस इंडिया में हो रहे हैं और इतनी जगह 69 कैपिटल C लगा दिया गया है, इतनी जगह 115 BBE लगा दिया गया है। इसका एक और बड़ा फॉल्ट पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट तो ये जो मैंने अपनी, ये गुजरात हाईकोर्ट ने डिटरमाइंड बाय द AO वर्ड पे नहीं गया खिवानी जी, गुजरात हाईकोर्ट तो शुद्ध इस बात पे गया कि क्या जो खर्चा किताबों में रिकॉर्डेड है, जिसका सोर्स किताबों में मौजूद है, उस पे आप 69C लगा सकते हैं? 69C नहीं लगा सकते, ये मैंने एक अपील में लिया। हाँ, कमीशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी आप एक और डिसीजन नोट कर लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट का, हमारे हाईकोर्ट का जस्टिस बदर दुरेज अहमद का राधिका क्रिएशंस। हाँ राधिका क्रिएशंस, यस ये भी है। ये जस्टिस बदर दुरेज अहमद का ऑर्डर है दिल्ली उच्च न्यायालय का। हाँ इसमें भी दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बात कही हुई है कि आप 69C को सॉरी रिकॉर्डेड परचेज पे नहीं लगा सकते, अकाउंटेड परचेजेस। करेक्ट, एम आई देयर? यस। अब आइए
एक और मैंने जजमेंट निकाला था, सॉरी, इसी कड़ी को कंप्लीट करने के लिए, वो भी अनरिपोर्टेड ऑर्डर है, गुजरात का ये, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। जस्ट अलाउ मी सर, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, क्योंकि वो डिसीजन आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है ये, क्योंकि वो हमारे एक बहुत अच्छा जज साहब हैं, ये इन्होंने क्या नाम है इनका, सजनी ज्वेल्स, जस्ट अ मोमेंट सर। इसके बाद मैंने एक स्टेप और फर्दर देखा उसमें कि सीआईटी अपील्स कैन नॉट चेंज द सेक्शन। वो एक अलग बात पे चले गए सर आप, वो मतलब मैंने दोनों आपका बातें। नहीं खिवानी जी, वो तो प्रैक्टिकली इसलिए हो गया कि आपका जो डायमेंशन है पॉइंट का, आई एम नॉट ऑन पावर ऑफ सीआईटी, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट that if he has to change the head of taxation, then again the same, but the, are you with me on this point? You go to the section, kindly have the book, law book, income tax book, and check what section 68 69 uses the phrase there. वहां पर भी उन सब सेक्शनों में दादा वर्ड लिखा हुआ है असेसिंग ऑफिसर। और देखिए हम अभी जजमेंट नहीं ला रहे, अगर एक्ट में वर्ड असेसिंग ऑफिसर लिखा हुआ है तो उसको आप सीआईटी अपील असेसिंग ऑफिसर थोड़ी ना है। करेक्ट, मैं बेसिक बात पे जा रहा हूं, रूडिमेंट्री बात पे। करेक्ट। आई एम सॉरी, आई डोंट नो आई मेक माय पॉइंट और नॉट। I made my point, sir. Yes, you have made your point. So ultimately, Khivani ji, the problem here, you can all note one decision of Gujarat High Court, sir, Sajani Jewels. This is also important. Sajani Jewels versus Deputy Commissioner of Income Tax. This is also saying to disallow the recorded purchases, 69 capital C cannot be applied. Or the judgment, there is a line which judge has written, Justice Akhil Qureshi, a famous tax judge in Gujarat High Court, this Sajani Jewels, Khimani ji, it says 69 capital C can only be probably invoked when the expenditure is not recorded in the books and the source is not explained. But if the expenditure is accounted and recorded and source is available in the books, then probably 69 capital C has no role to play. सिंपली लाइक देश के मैंने शादी में खर्चा किया, वो रिकॉर्डेड नहीं है, उसको ले सकते आप। But you know, all these things which is being discussed by me at this junction is due to very important reason, Rajesh bhai. You know what is happening due to this. That case which I was telling you, one of my client who has got this 263, because CAT साहब को अभी ऐसा था कि 115 BBE नहीं लगाया तो डिमांड ही नहीं बनाया। और आप बोलेंगे उसका डिमांड क्यों नहीं बना था, 37 हुआ था तो। Khivani ji, note it, bear with me now, I'm telling you very important. In that case, that assessee को 37 में अगर डिसअलाउ करा ये उन्हें और उसका बिजनेस इनकम बढ़ गया तो ATIE ATIBC उसको मिल रहा था, तो एओ साहब ने उसको ATIE ATIB ATIC भी दे दिया। अब CIT साहब ये कह रहे हैं कि वो बिजनेस हेड में डिसअलाउ करना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे को, और तुमको ATIE ATIC का भी बेनिफिट नहीं देना चाहिए था, तुमको तो सीधा 69C और 115 BBE लगाना चाहिए था। मतलब the version of the Commissioner of Income Tax in 263 was that AO has wrongly invoked 37 section, disallowance of expenditure, and AO has wrongly given deduction of enhanced business profit. AO should have done 115 BBE, read with 69C. That is the version of CIT, and that which Gujarat High Court का जो मैंने अगस्त 23 का आपको ऑर्डर लिखवाया और सजनी ज्वेल्स, this is totally wrong. And see, I have already submitted this. CIT cannot do it, sir. What is the word? See, ultimately 115 BBE says it is baby of AO. And then my second point is this expenditure 69C, recorded expenditure के लिए आप 69C नहीं लगा पाएंगे। और इसकी वजह से आपको पता है अग्रवाल साहब, अगर आप सोचिए, अगर किसी केस में आपने किसी एसएससी की सेल पूरा मान लिया, आई एम गिविंग ए डिफरेंट पिक्चर नाउ, सॉरी, सेम थिंग आई एम सेइंग बट आई विल से इन डिफरेंट वे। Supposingly I am a trader or this particular assessee is a businessman, he is making a profit and loss account, his entire gross receipt is Khivani ji, all receipts are accounted, no dispute, no trading outside the book. No trading outside the books, all sales part of my credit side. My kharcha is also part of books. Now you say you are genuine seller, we accept. Whatever income is offered in the business head is also accepted. But that part of purchases which is coming is not accepted. वो हमें कबूल नहीं है, बाकी सब कुछ कबूल है, बाकी सब तलाक है, तलाक है, तलाक। ये कैसा कबूल और तलाक हो रहा है सर? दोनों, ये कुछ चीज कबूल हो रही है, कुछ चीज तलाक हो रही है। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा ये क्या बोल रहा हूं, ये हो ही रहा है। आपको सेल कबूल है, आपको पीएनएल अकाउंट की इनकम कबूल है, आपको उसमें खर्चा कबूल नहीं है। क्या मेरे पीएनएल अकाउंट को पीस मिल में एक्सेप्ट किया जा सकता है और पीस मिल में रिजेक्ट किया जा सकता है? और क्या असेसिंग ऑफिसर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकास्ट कर सकता है? ये नोट कर लीजिए, 115 BBE के लिए हो रहा है सब कुछ मोह। एक देखिए आदमी से मोह बहुत कुछ करा देता है हम सबसे सर।
115 बीबीई का मुंह आपसे क्या करा रहा है? हम पीएनएल अकाउंट की सैंक्टिटी नहीं समझ रहे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सैंक्टिटी नहीं समझ रहे, हम ऑडिटेड रिजल्ट्स की डिफेक्ट फ्री, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, कोर्ट ने कहा है राजेश जी, आप सोच रहे होंगे योर अकाउंट्स आर ऑडिटेड डिफेक्ट फ्री, your all transactions are part of books of account and P&L account, everything is accepted to the department but for 68 69C etc due to 115 BB. This takes me to another question, Khimani ji. Can you do something indirectly but you cannot do directly? That is, to just explain my point, when trading income, business income has to be assessed only under business head and their receipts are not taxable under section 28. Only trading profit and business ka profit taxable hai. Can you bypass it and say that we will tax gross receipts by indirect means by applying section 69 etc and 115 BB? This is a very serious question, and this is not only the subject matter of serious litigation between Government of India and Revenue and this assessees in AY 1718 demonetization cases, and today also this is going on, Rajesh ji, this serious issue. That trading income, trading transactions or trading nature of transaction can be assessed under 115 BB. Because you can't directly apply 115 BB to trading income, Khimani ji, you have to assess my income of trading under business head. और बिजनेस हेड में तो बिजनेस इनकम टैक्स करेंगे, और बिजनेस इनकम को अगर आपको टैक्स करना है तो बिजनेस का मुनाफा निकालना है. आई रिमेंबर मिस्टर पालकीवाला व्हेन ही वाज अलाइव, he fought one case before Bombay High Court and it's reported in Pithisarya Chaturvedi and Palkiwala commentary that great legal eagle said कि आपको अगर बिजनेस इनकम में कोई चीज टैक्स करनी है तो बिजनेस इनकम goes by real income. Yes. Am I right? He brought this concept. और उस कंसेप्ट को धज्जियां कहां उड़ रही हैं अब यहाँ पर, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली तो बिजनेस इनकम को टैक्स, बिजनेस हेड में तो आपको बिजनेस इनकम ही टैक्स करने को मिलेगा. अब आप क्या कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए, स्कर्ट करने के लिए आप 68 पे पैराशूट लैंडिंग कर रहे हैं, 69 पे बिजनेस इनकम को आपने रियल इनकम को साइड कर दिया. आप कह रहे हैं छोड़िए, हमें बिजनेस हेड से कोई लेना देना नहीं है, हमें 68 69 ज्यादा प्यारा है, क्योंकि 68 69 से हमें इसलिए प्यार है क्योंकि उसका रास्ता 115 बीबी के जाकर गंतव्य पे खत्म होता है. राधे राधे, बाकी बिहारी लाल की जय हो, ठाकुर जी महाराज दया करे बचाए इन सबसे. अगर ऐसी ट्रेडिंग इनकम को आपको बिजनेस हेड को भी आपने 115 बीबी पे लगाना है, और ये चॉइस है क्यों नहीं जी कोई उसके पास ऐसे करने का. ये बहुत सीरियस इशू डिस्कस कर रहा हूं मैं. आई बिलीव आई एम मेकिंग माय पॉइंट. इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टैक्स असेसमेंट्स व्हिच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज डन, especially after 60% rate of AY 1718, I can say with sincerity, there are 100,000 of cases, Agarwal sahab, where this section has been applied to trading transactions, and I am saying with command that it is totally fundamentally flawed. Then for what business head is there? Then for what section 145 of books of accounts is there, जो कहता है कि आपकी बिजनेस इनकम बुक्स के बेस पे निकलेगी या 115 बीबीई के बेस पे निकलेगी? ये मेरा सवाल है. ये कमाल है सर. आपकी इसका मतलब बिजनेस इनकम ना तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर निकलेगी, ना आपके ऑडिटेड अकाउंट्स पे निकलेगी, ना आपकी बुक्स पे निकलेगी, ना बिजनेस हेड में निकलेगी. तो कहां निकलेगी बिजनेस इनकम? आप कहेंगे गोयल साहब 115 बीबी में निकलेगी. 115 बीबी में कैसे निकल सकती है? इट इज द मदरबॉर्ड ऑफ बिजनेस इनकम. सॉरी, इट इज द सेक्शन मेंट फॉर अग्रवाल साहब फॉर एनोनिमस टाइप ऑफ इनकम फॉर विच देयर इज सीरियस, जहां जो किताबों में रिकॉर्डेड भी नहीं है, जहां उसका नेचर ही पूरा डबियस है, फ्रॉडुलेंट इनकम है. अब ये तो भाई साहब ज्यादातर केसेस आप देखेंगे, आप मेरे साथ इतने सारे 94 लोग हो गए भी, तो अग्रवाल साहब उसमें आप देखेंगे ज्यादातर जगह जहां 115 बीबी लगा हुआ है वो किताबों में रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजैक्शन पे लगा हुआ. मेरी बात खिवानी जी, आई होप आई एम एबल टू मेक माय पॉइंट दैट ट्रेडिंग इसके लिए मैं एक जजमेंट निकाल के लाया हूं, जैसे वो गुजरात हाईकोर्ट वाला था, मतलब मेरे को ढूंढने को मिला पढ़ने को, और आपको शेयर जरूर करूंगा बिना उसके मेरी बात कम. ये हमारे बहुत लर्नेड जुडिशियल मेंबर है बॉम्बे में, अमित शुक्ला साहब, उनका लिखा हुआ ऑर्डर है. इस केस का, ये बॉम्बे आईटीटी का फैसला बता रहा हूँ राजेश जी, और इस फैसले की बड़ी अहमियत है. ये इसमें इसका पूरा नाम बताता हूँ आपको पहले एक मिनट. इसका नाम है गोविंद लुल्ला, LULLA, और इसका डेट है 11/4/2023. गोविंद याद रखिए आप, बॉम्बे हाईकोर्ट गोविंद लुल्ला, 11/4/2023, बॉम्बे ITAT. द मेंबर हु हैज ऑथर्ड इज मिस्टर शुक्ला. और इस केस के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन जो उन्होंने लिखी है और पकड़ी है, वो मुझे
जिसकी वजह से मैं मजबूर हुआ इस डिसीजन को अपने, एक गुजरात हाईकोर्ट जैसा डिसीजन ही है ये। खिवानी जी देखिए कितना बढ़िया बात लिखा है इसमें। इसका नाम है पूरा गोविंद गिदोमल लुल्ला, 11/4/23, ITA नंबर 2285, ITA नंबर 2285 बॉम्बे 2022, 285 मुंबई 2022, 2285 बटा मुंबई बटा 2022, 2285/2022 मुंबई ITT, 11th April 2023. Up now see, paragraph 6 of this order says, this case, I will mention Gulati ji, just a moment. This is Mumbai ITAT. Just sir, I will do this because you are right. This is important judgment. I should mention it. Here, Govind, 11/4/2023. Now, please note. Now, in this judgment, Agarwal sir, facts of the case were this: there was a particular survey action on this assessee, 133A, Himani ji, and in that survey, excess stock was found. Noted, and it's very common. ये जब आप सर्वे सर्च होता है, कैश मिल जाता है, ज्यादा स्टॉक मिल जाता है राजेश जी सर्च में, और नहीं भी मिलता तो पता नहीं हो जाता होगा। है कि आप सही मुस्कुराए, आप सही मुस्कुराए आप। तो मिल गया, अब मिलने के बाद सर लाला जी ने मान भी लिया, गोविंद दुल्ला जी ने भी कि साहब हाँ मैं इसको, ये मेरा बिजनेस इनकम है, अनडिस्क्लोज्ड बिजनेस इनकम। The word used in the survey statement while offering it for taxation in the statement of survey was undisclosed business. आप कहेंगे ये कहते तो जीएसटी वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। भैया मुझे नहीं पता, देखिए मैं कोई ऐसा इलाज नहीं बता सकता, या मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, मेरे को जीएसटी भी गोयल साहब हमारा नहीं लगा और इनकम टैक्स भी नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं होता सर। सॉरी खिमानी जी। So तरफ से मेरी जेब में थोड़ी आया। नहीं, I have to say this word because people ask me कि जीएसटी कैसे बचेंगे। आप गलत आदमी से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि कपिल गोयल को तो इनकम टैक्स ही ढंग से नहीं आता, राजेश अग्रवाल जी बुलाते रहते हैं मुझे। 115, अच्छा एनीहाउ सॉरी, कमिंग बैक टू सीरियस पॉइंट, कि सर्वे हुआ लुल्ला जी पे, उन्होंने बिजनेस स्टॉक सरेंडर कर दिया और उस पे टैक्स दे दिया राजेश भाई, उसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जनरल एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट, मैं बता रहा हूं इतना, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, और वो ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम बन गई और उस पे बिजनेस रेट इनकम के हिसाब से स्लैब रेट पे टैक्स दे दिया गया। अब खिवानी जी डिपार्टमेंट की आत्मा शांत नहीं हुई, डिपार्टमेंट ने क्या किया इस पर्टिकुलर केस में लुल्ला साहब के, इनके ऊपर सेक्शन 69 का प्रहार कर दिया, 115 बीबीई का प्रहार कर दिया, दोनों जुड़वा है, 69 115 बीबीई इंटरट्वाइंड हो गया। अब 69 का प्रहार करने से, अब देखिए किताबों के अंदर जो मेरा स्टॉक था उस पर 69 लगा दिया, जबकि वो सेक्शन नहीं लग सकता था। फिर ट्रिब्यूनल को यह बताना पड़ा सर कि आप इस तरीके से जो स्टॉक बिजनेस के थी, इसमें इस जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, वो मैं पढ़ रहा हूं सर, आई विल रीड इट। इसमें ट्रिब्यूनल ने क्या लिखा है, असेसी इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्वीट्स, मिठाई का काम करते हैं गोविंद साहब, एंड द स्टॉक विच वाज फाउंड वाज द रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स। In the course of survey, the assessee in his statement on this issue merely stated that he will provide the reconciliation in some time about the discrepancy. However, later on the assessee offered difference for taxation as business income because the excess stock was said to be purely purchase of material for making sweets during the course of business. If assessee is carrying, or now this is the judgment of the tribunal in one line, very important line. If the assessee is carrying or business and some undisclosed stock is found, then same is taxable as undisclosed business income. It cannot be a case of undisclosed investment. And 115 BB and 69 both cannot be applied. So this judgment in 2023 again vindicates that position. If a businessman is surrendering during search and survey, which is the income out of business income, then that cannot be classified under 68 to 69D read with 115 BBE. That has to be assessed as trading income under business head only. Should I repeat this preposition, sir, or is it clear? नहीं, repeat. So if during the course of search or during the course of survey or otherwise department detects some undisclosed business income, the word used is undisclosed business income. Now business, I want use the word because the assessee is genuinely engaged in the business. There is no other source beside the business, and the income is detected due to business operations, coming due to business operations. That link is not disturbed. So the taxation cannot come under 68 to 69D read with 115BE. That has to be only under business head. This jhagada is due to this because department is taking all these undisclosed business income under 68, 69, etc. and 115BB. तो वो 69C वाला जो गुजरात हाई कोर्ट का प्रिंसिपल था और ये जो बॉम्बे आईटीटी का 69 वाला जजमेंट है, मेरे हिसाब से लॉ बिल्कुल क्लियर है सर। और जो मेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी कहती है, जो हमने शुरू में समझने की कोशिश करी कि 5 heads of taxation जैन साहब on one side and special income, this aggregation of income on other side and special rate of taxation on other side.
We can't say that just to have more taxation, just to have more big demand. We take all cases of unexplained business income, undisclosed business income, etc. to 115BB forcefully by any means or by hook or by crook. So the illustration which I was giving was undisclosed stock found during the course of survey, which court said, tribunal said it cannot be part of 69 and 115BB. It has to be taxed as business income. And there have been decisions on these lines from the tribunal, other benches of the tribunal, Guwahati, Chandigarh, Jaipur, where the Khiwani same proposition and same principle of law has been laid down with clarity that if assessee is a businessman, trading operations, and there is no other source of income, and the survey team and search team found some undisclosed income, then the first presumption will be that it is business income, not 68, 69 income. Am I there, sir? So this point I have explained due to this reason that we can't make section 115BBE as a home or as a place to tax all types of business income. Maybe they are undisclosed business income. It cannot be randomly applied for anything and everything. So there is a two-tier classification here. There can be a case where Gensab, they have applied 115BBE to disclose trading transactions which are part of my books, which I was saying for 69C. And they have applied this section to also undisclosed business income. Am I there? I am talking about two type of trading operations. Agrawal sir, very finely point. ये मेरे बात करते करते दिमाग में आ रहा है कि एक खिवानी जी वो क्लासिफिकेशन है कि जहां भाई साहब असेसी का सारा काम किताबों में रिकॉर्डेड है, उसने कोई आउटसाइड द बुक्स अफेयर नहीं किया. सॉरी, मुझे वर्ड अफेयर यूज कर रहा हूँ. खिवानी जी को वो करता हूँ तो खिवानी जी को देख के मुझे कुछ ऐसा होता है कई बार तो कि मुझे देखकर लॉफ्टी फ्रेज भी याद आने लग जाते. सॉरी, बड़े प्यारे नहीं, लवली फ्रेज. सॉरी. तो 115BBE 68 को लगाने के लिए ट्रेडिंग ऑपरेशंस पे जैन साहब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. वन फॉर डिस्क्लोज्ड ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस व्हिच आर पार्ट ऑफ माय बुक्स, recorded, accounted, and which are not recorded. Yes. My submission is this humble and analysis says me कि recorded पे तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता कभी भी. Yes. मतलब जिन केसेस में 68, 69 रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस पे लग गया ट्रेडिंग, उससे ज्यादा अत्याचार नहीं हो सकता सर. हरेसमेंट. मेरे को अत्याचार वर्ड यूज करने में कोई शर्म नहीं है इस बात. और अनडिस्क्लोज बिजनेस इनकम के लिए भी डिपार्टमेंट 68, 69 नहीं कर पाएगा जिसका नेचर बिजनेस. मैं एक जजमेंट नोट कर रहा था खिवानी जी, और ये जजमेंट मेरे को लगता है बड़ा अनट्रेवर्स पेपर, बड़ा काम का जजमेंट है भाई. See what is the preposition. Agrawal sir will pay attention to me this. Now he will also appreciate. See, last time when I was discussing black money law topic, I discussed this doctrine of approbate and reprobate. जैन साहब, approbate and reprobate means कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो पार्ट आपको सूट करे वहां तक तो आप मान लो, जहां आपको सूट ना करे वो ना मान. उदाहरण, illustration is this, and please pay attention. An assessee is there, Khivani ji. I am taking the third very important illustration of the day today. An assessee is there, he is filing his return under section 44 AD, presumptive income. Am I there? And presumptive income mein he is otherwise having eligible assessee, his turnover is less than that prescribed amount, and he is showing profit, Agrawal sahab, more than 8%, जो भी उसका lower दिखाया. And the receipts, let us say 1 crore का ऊपर उसने 10% दिखा के ऑफर, 10 lakh rupees दिया. अब खिवानी जी, डिपार्टमेंट in these 44 AD cases, when they have been assessed under security and when they have been reopened, because ये जो डिपॉजिट होता है कई बार कैश में होता है और कैश डिपॉजिट की वजह से केस 148 में रीओपन हो जाता है. प्रैक्टिकलिटी भी लिंक कर रहा हूं साथ साथ में. AAR से इंफॉर्मेशन आ जाती है, इनसाइट पोर्टल पे इंफॉर्मेशन आ जाती है, ढिमकाना. मुद्दे का बात है कि जब केस असेस हो रहे होते हैं तो डिपार्टमेंट की धारणा फिर सब चीजों पे जनरली ले जाकर उनको 115BBE पे ले जाती है. वो कहेंगे कैसे गोयल साहब, 44 AD की जो इनकम आपने रिटर्न में भर दी सर अग्रवाल साहब, और जिस ग्रॉस रिसीट पे आपने 8% दे दिया, 10%, क्या वो ग्रॉस रिसीट और वो डिपार्टमेंट को कबूल है? फिर मैं बोलूंगा बार-बार कबूल, मुझे कबूल, मतलब वो 44 AD की इनकम कबूल है, वो 44 AD में जो आपने परसेंटेज दिखाई है वो कबूल है, बट वो कह रहे हैं ये जो ग्रॉस रिसीट जिसके ऊपर 44 AD की इनकम दिखाई है ये हमें कबूल नहीं, ये हम अलग से 68 में भी ऐड करेंगे. ये संभव है? ये हो रहा है. ये मतलब बड़ा इन्वेंटिव माइंड है सर. ये नोट करिए, मुझे केस लड़ना पड़ा शमी मियां साहब के सामने. हमारे 4 ITT का एक ऑर्डर भी आया है बड़ा इंपॉर्टेंट. कमल कुमार जैन, 21 सितंबर 2023.
कमल कुमार जैन, दिल्ली ITAT, 21 September 2023, ITA नंबर 2235/2022, 2235/2022, ITA नंबर 2235/2022, 21 सितंबर 2023, कमल कुमार जैन, दिल्ली ITAT। इसमें ये फैक्ट से ये 44 AD की रिटर्न भर रहा था जैन साहब SSC, और उसके अंदर ग्रॉस रिसीट्स दिखाकर जो बैंक में आया था उस पर जो परसेंटेज होता है वो दिखा दिया था। डिपार्टमेंट ने असेसमेंट जब करी थी तो जहां इनकम कंप्यूट करते हैं वहां पर साहब इन्होंने जो रिटर्न इनकम थी उससे शुरुआत करी जो उसने दिया हुआ था, और उसके अंदर 68 लगाकर राजेश जी उस बैंक डिपॉजिट को जोड़ दिया जो जिसपे जिस रिसीट के ऊपर 8% ऑलरेडी इनकम कंप्यूटेड है अभी 8%। ये देखिए हमारे आर्या साहब इग्नाइट हो गए, मेरी बात सुन के लोग ये क्या मेरे दोस्तों में ये बड़ा कमाल है, कह रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑन एक्सट्रैक्शन मोड। राधे राधे में कुछ देखिए हम तो एक हम बड़ी विनम्रता से बात कर रहे हैं कि जो इस तरीके से टैक्स ले रहे हैं क्या है। अच्छा मैं जो जजमेंट पे ना भूल जाऊं, सॉरी। अब खिवानी जी मेरा दिमाग एक बात पे गया कि डिपार्टमेंट को ये अप्रोबेट रेप्रोबेट कर रहा है क्या? अप्रोबेट रेप्रोबेट मतलब वो 44 AD कबूल है, बिजनेस इनकम कबूल है, परसेंटेज कबूल है, पर उस रिसीट के ऊपर 68 कबूल कैसे नहीं है? क्या ये क्या हो रहा है ग्रोल सर? नोट द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द लीडिंग एंड लैंडमार्क जजमेंट। पुराना जजमेंट है थोड़ा सा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजेश जी। मैं इसका बताता हूँ इसमें प्रिंसिपल क्या है। CIT वर्सेस सूरत कॉटन, CIT ये मैंने पिथिसारिया चतुर्वेदी से अभी निकाला है। CIT वर्सेस सूरत कॉटन 202 ITR पेज नंबर 932, 202 ITR पेज नंबर 932, सूरत कॉटन। इसके अंदर ये प्रिंसिपल ले डाउन किया है खिवानी जी, लैंडमार्क जो सारे केस पे लगता है 115 BB, बहुत सारे केस कि दैट इफ डिपार्टमेंट इज एक्सेप्टिंग वन पर्टिकुलर इनकम इज अंडर बिजनेस हेड और वन पर्टिकुलर हेड, then that particular thing is not available for assessing under any other head. I repeat, this landmark judgment says if department is accepting that one particular receipt or transaction falls under one particular head, then that is not available for assessing under any other head. This is a landmark point. तो डिपार्टमेंट तो अभी बिजनेस तो कबूल कर रहा है, 44 AD कबूल कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट कबूल कर रहा है, पर उसी पे 68 लगा दे रहा है, 69 लगा दे रहा है उसी 44 AD की रिसीट पे। ये अप्रोबेट रेप्रोबेट नहीं है तो क्या है? और ये जो सूरत कॉटन है ये 202 ITR 932 ये क्यों नहीं लगेगा इस पे सर? I confirm the citation again, sorry, it's a very important judgment. Sir, the citation is 202 ITR 932. It says, once the assessing officer has assessed a particular receipt under a particular head of income, the amount is no more available to him for assessment under any other head. Maniji, is it not a very important principle, sir? These people are... Yes. Although I believe, जब मैंने पढ़ा मुझे साउंड हुआ, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय लॉर्ड्स इन दिस, ये बड़ा रूडिमेंट्री प्रिंसिपल है, ये बड़ा एलिमेंट्री है, बट इसकी अहमियत देखिए। हमारे को तो 115 BB में इसी प्रिंसिपल का ना पालन करने से कितना दिक्कत हो रहा है ससीस को। अरे उस 44 AD वाले को जिसकी रिसीट इन्होंने मान ली, उसकी 44 AD की। अच्छा एक बात होती राजेश भाई, वो देखिए ऐसा भी एक केस आया दूसरा कि जिसमें उसने क्या किया, ये वो थोड़ा इंटेलिजेंट, वो बेटर एओ साहब थे, उन्होंने उस 44 AD की इनकम को डिलीट करा, पहले डिलीट मारा, मतलब ये हम कम कर रहे हैं, फिर 68 लगाया। अच्छा, ये भी केस है खिवानी जी मेरे पास प्रैक्टिकली। दोनों में अंतर में आ गया आपको? हाँ। क्या बताइए, क्या क्या सॉरी आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या सबके बेनिफिट के लिए बताइए क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर ये हुआ है कि एक में तो कह रहा है कि ऐड कर दिया, they cannot go beyond that scope. दूसरे में मैंने कहा ये मैं एडजस्टमेंट ये रिड्यूस कर देता हूँ और फिर उधर ऐड कर देता तो हूँ। उसमें इसका मतलब जब उसने एक जगह जहां उसने रिड्यूस किया तो उसने कहा ना कि जहां ठीक है तुम्हारा 44 AD वाला जो तुम खुद टैक्स दे रहे हो वो मैं हटा रहा हूं एक बार, वो हटा रहा हूँ और बिना हटाए उसमें बिना हटाए तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना आप। करेक्ट, वो उसने सारा हटा दिया। तो सर 90% केस में नहीं हटाया, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। हाँ नहीं हटाते, ये तो यूनिक केस हो, इसने हटा दिया। हाँ तो वो एक ही केस है, ये भी मैंने इसलिए बोला, मुझे पता कैसे चलता, आप कहेंगे गोयल साहब मेरे को पता कैसे चलता, मैं कैसे बोलता अग्रवाल साहब ऐसे, आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव दैट केस इन माय चैम्बर। करेक्ट। बट कमिंग बैक टू माय पॉइंट दैट इफ एन एसएससी इज लेट अस से, मैंने अभी जो इलस्ट्रेशन दिया वो 44 AD वाला दिया जिसमें उसने ग्रॉस रिसीट पे 68 लगा दिया और कमल कुमार जैन ने उसको डिलीट कर दिया। उसने कहा जो 44 AD में ऑफर हो गया उस पर 68 नहीं लग सकता। करेक्ट। बट इसको मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट को अप्रोबेट रेप्रोबेट से भी लिंक कर दिया। Am I there? अप्रोबेट एंड रेट्रोबेट। रेप्रोबेट मतलब आप चित भी मेरी पट भी मेरी, देसी भाषा में मतलब
जो हमें सूट करता है वो तो हमें कबूल है, राधे राधे, बाकी बिहारी लाल की जय हो। और जो हमें कबूल नहीं है वो राधे, क्या ये क्या मतलब हुआ? इसमें एक और बात निकल गई, नहीं जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली शिवानी जी, कि आप मेरी बुक्स में जो पीएनएल अकाउंट है उसके उसके विभाजन कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। नहीं, आप कहेंगे मेरे सबमिशंस को भी टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, हाई कोर्ट का ऑर्डर। तो आप इस बात को ऐसे लगाइए सर, काइंडली अप्रिशिएट, जस्ट हैव माय पॉइंट लाइक दिस, दैट इफ यू हैव टू जस्ट टेक इट टू द अदर एंड, कि जहां राजेश जी डिमोनेटाइजेशन के केसेस में हमने कैश सेल करी, लेटर से ज्वेलरी की, और वो मैंने किताबों में रिकॉर्ड कर दी और पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट में ऑफर कर दी जैन साहब, और उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पीएनएल अकाउंट में, उसको डिलीट नहीं मारा, उस पर जो इनकम आई एक्सेप्ट कर ली, तो ये जो जजमेंट बॉम्बे हाईकोर्ट का मैंने आपको लिखा है नहीं लगेगा वहां पर? आपने जब एक बार मेरी सेल को बिजनेस का इनकम मानकर पीएनएल अकाउंट एक्सेप्ट कर लिया, तो वो 68 में कहां लगा सर, 69 कैसे लगा? ये कमाल है, ये तो बड़ा जादू है कि आपको बिजनेस इनकम भी कबूल है और वही चीज पे 69 भी लगा रहे हो, 115 बीबी भी लगा रहे हो। ये जादू नहीं लग रहा आपको खिवानी जी, कि वो बिजनेस इनकम जो आपको पीएनएल अकाउंट से पैदा हो रही है, जिसमें क्रेडिट साइड पे सेल दिखा दी गई है, वो सब आपको कबूल है? मैंने परचेज का एग्जांपल थोड़ी दिन पहले दिया था, जहां 69C परचेज पे लगाया गया था गुजरात हाईकोर्ट वाला, बट जहां यही दूसरा प्रारूप है अग्रवाल साहब, जहां सेल पे 68 लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के बाद हुई है, वो कैश में हुई है, वो ज्वेलर के द्वारा हुई है, पेट्रोल पंप के द्वारा हुई है, ढिमकाना के द्वारा हुई है, और उसको कैश करने के पीछे प्रूडेंस समझ में नहीं आ रही कि उसकी कैश क्यों हो गई, तो उस पर 68 लगा दो। तो भाई पहले तुम आप ये तो समझोगे कि मेरी वो कैश सेल, उसकी पोजीशन क्या है फैक्चुअल, वो किताबों का पार्ट है, सेल अकाउंट में क्रेडिटेड है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे व्यवस्थित है, उसके ऊपर जो इनकम पैदा हुई वो ट्रेडिंग और रिटर्न इनकम में ऑफर्ड है। तो इसमें जैन साहब वो जो एक बार आपने बिजनेस इनकम एक्सेप्ट कर ली, वो हटी नहीं वहां से, तो उसका स्कोप कहां बचा 115 बीबी लगने का? मैं बार बार यही बोल रहा हूं, एक ही बात को 4 बार बोल रहा हूं। और वो पीएनएल अकाउंट कबूल है, ट्रेडिंग अकाउंट कबूल है, सेल कबूल है, बुक्स कबूल है, बिजनेस अकाउंट कबूल है। कमल कुमार जैन, आई एम जस्ट राइटिंग सर हियर, जस्ट अ मोमेंट, प्लीज नोट, कमल कुमार जैन इज दिल्ली आईटीटी। राजेश भाई ये अच्छा है, ये लिखने से क्या होता है, मुझे भी और ज्यादा याद हो जाता है, रट्टा मर जाता आपको तो सब कुछ याद है सर। है। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता, आप लोग बोलते हैं पर ऐसा नहीं होता, ये तो क्या है कि करत करत अभ्यास। एनी हाउस, जन्मति हो सुदान, कभी ने कहा ना भाई, सही देखिए, तो क्या है, बार बार कहने से, याद करने से तो ये रिपोर्टेड नहीं है कमल कुमार जैन? नहीं सर, नहीं सर, ये रिपोर्ट नहीं, मेरे को रिपोर्टेड की सजेशन में तो मैं खुद आर्ग्यू किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ शिवानी जी, मैंने इस समय फिर उसके बाद ये पितिसारे चतुर्वेदी में पढ़ रहा था जैन साहब, ये बड़ा अच्छा साइटेशन है बॉम्बे हाईकोर्ट का, ये बड़ा कमाल का है, रेप्रोबेट वाला, ये जो सूरत कॉटन वाला जजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। एनी हाउस, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया, सूरत कॉटन में रिपोर्टेड नहीं है। नहीं, सूरत कॉटन रिपोर्टेड है ना, 202 ITR 932 सूरत कॉटन, वो बॉम्बे हाईकोर्ट, ठीक सूरत कॉटन, वो लिख देता हूँ सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 202 ने ITR। लिखा है आपने पहले, विशाल चौधरी ने लिख के दिया डाला हुआ। एनी हाउस, तो सो आई हैव डिस्कस 69C वाला पॉइंट सर, आई हैव डिस्कस 44 AD वाला पॉइंट सर, आई हैव डिस्कस स्टॉक वाला पॉइंट सर, इन पर्सपेक्टिव ऑफ 115 BB। करेक्ट, much is clear sir, 69C वाला पॉइंट, GST परचेजेस वाला, and this undisclosed stock वाला, and this now I come to my fourth point sir, very important Rajesh bhai, very important. So what happened in a case SSC was such, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इन जो जितने भी मैं सेंटेंस बोलूंगा इनसे आपको बहुत सारे क्लूज मिलेंगे और मैं पूछूंगा भी। An SSC Jain Saab is searched, and Rajesh Jain is rightly smiling. See, a person is searched, and that's how I read this case law, which I'm going to tell you. Again, a landmark preposition. In this case, an SSC was searched, and in this search, some document was found, Shivani ji, and that document exhibited that SSC has done some undisclosed transaction in commodity trade. Com trade लिखा था उसका कागज पे, incriminating. Com trade. और कुछ अमाउंट लिखा था। अग्रवाल साहब सुनते जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए। यू आर ए वेरी एक्टिव माइंड ना। सी कॉम ट्रेड लिखा था, वो खर्चा वो मिल गया कि सर्च में, वो असेसी ने ऑफर कर दिया। सर्च स्टेटमेंट में रिटर्न इनकम जब भरी, उसको अदर सोर्सेज में स्लैब रेट के हिसाब से इंडिविजुअल ने टैक्स दिया। डिपार्टमेंट ने उस इनकम को जो उसने ऑफर करी थी कॉम ट्रेड के रिटर्न में,
उसको उस हेड में ना मान के वहां से हटाकर 69 कैपिटल ए में शिफ्ट कर दिया ताकि 115 बीबीई लग जाए। लग जाए। ट्रिब्यूनल के सामने शुद्ध पर्सन ही आया, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सखीजी दे साहब, कि क्या डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है जो इनकम आपने रिटर्न में ऑफर कर दी एक पर्टिकुलर हेड में जिसपे आप टैक्स दे रहे हैं, क्या उसको 69A में इस तरीके से रिकरेक्टराइजेशन और रिक्लासिफिकेशन हो सकता है 115 बीबीई लगाने के लिए? नहीं होना चाहिए। दिल्ली आईटीएटी का फैसला सर नोट कर लीजिए, लैंडमार्क तपेश त्यागी, दिल्ली आईटीएटी तपेश त्यागी, ये शायद कहीं रिपोर्ट ना हुआ हो, इसका जजमेंट का नाम है तपेश त्यागी, 27 अक्टूबर 2023, आईटीए नंबर 1344 बटा डेल बटा 2021। तपेश त्यागी आ गया सर, तपेश है ये, तपेश त्यागी, सॉरी। आ गया। आई रिपीट, दिल्ली आईटीएटी तपेश त्यागी, आईटीए नंबर 1344 बटा डेल बटा 2021, 27 October 2023, argued by our beloved Mr. Ajay Badwa Saab. Now, in this case, Mr. Dey, the Vice President of our tribunal, Delhi benches, Agarwal Saab, has very beautifully and succinctly said that 115 BBE and 69A cannot be applied to recharacterize the income offered for tax in the written income. शिवानी जी, इसमें भी बहुत harassment हुई है और हो रही है कि जहां 115 बीबीई लगा दिया गया, जो आप ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं वो कबूल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें फिर वो हेड चेंज करना चाहते हैं और उसको हेडलेस बनाना चाहते हैं या अनएक्सप्लेन बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें क्ल्यू क्या था राजेश जी? एक क्ल्यू था कि जैसे किसी को सच में इनकम सरेंडर करनी होती है कई बार। अच्छा, उधर कर दे। Anyhow, 115 बीबी से बच जाएगा वो। आई डोंट नो, मतलब सी वो उस कागज के अंदर कॉम ट्रेड लिखा हुआ था, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस कागज को डिपार्टमेंट डिस्प्यूट नहीं कर सकता, तो इससे मुझे कुछ ऐसा लेसन लगा कि जैसे पता नहीं, आई डोंट नो हाउ इज टू बी टेकन। आप लोग समझदार हैं, आप ज्यादा समझ पाएंगे, मैं समझा नहीं पाऊंगा। कुछ चीजें होती है वो उस ऐसी होती है जो खुद समझने के लिए ज्यादा बेटर रहती है, उसको ज्यादा समझाना नहीं चाहिए। क्यों भिवानी जी? यहां तक ठीक है, ये बात सही कही है मैंने सेंटेंस सर? आपका आवाज म्यूट हो गया भिवानी जी। इशारों को समझा करो। तो ये तपेश त्यागी का भी ऑर्डर मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन जो बहुत दिनों से मैं सोचता था कि कहीं आएगी ट्रिब्यूनल की, इसलिए राजेश भाई इन्हीं चारों पांचों ऑर्डर की वजह से मैंने आपको सजेस्ट किया था कि 115 बीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन। ठीक कह रहे हैं विशाल चौधरी जी, परमात्मा पर हमें क्या आदत होगी सर, परमात्मा का नाम तो हम राम का और कृष्ण का तो चीख चीख के ही लेंगे, हमारे को बिहारी जी के यहाँ जाते हैं ना, जय बाके बिहारी लाल है, कान्हा कृपा, राधे राधे। राधे 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 राधे। अब तो कृष्ण जन्म मूवी भी लेके रहेंगे। हाँ, तो अगला नंबर वही है सर। Anyhow, हाँ, let me switch to another point now. करेक्ट। Tapesh is clear ना शिवानी जी? हाँ जी। Now, when I was just saying you कि 115 BB is what using the word determined by you and the rate of tax is 60. There are two important aspects, another peripheral aspect. कि Mr. Goel, if an income has to be classified under section 68 to 69D, जो मैं बात बीच में बोल रहा था कि मैं डिस्कस करूँ, how the income tax department Agarwal साहब has to decide or how the law is there कि कौन सा income 68 में आ रहा है, because you know when we were talking about this chapter 6 aggregation of income, section 68 is unexplained cash credit, section 69 is unexplained investment, section 69A is unexplained money, section 69B is amount of investment not fully disclosed in books of account, section 69C is unexplained expenditure, and 69D is amount borrowed or repaid on hundi. Now, there is a Khimani ji, another very important and material issue here. That if 115 BBE has to be rightly applied, then the life of 15 BBE is hinging upon right invocation of section 68, 69, etc. In other words, if section 68, 69 is wrongly invoked, then 115 BBE will automatically fall. I again repeat my submission that if the provisions of section 68 etc. are mechanically, arbitrarily or untenably, illegally or incorrectly applied, then 115 BBE will automatically go.
that is coming from conjoint and collective reading and cursory plain reading of section 115 BBE. So the question here now comes, very important, कि how you decide in which circumstance which अब इनमें भी 5 हो गए ना, चॉइस हो गई राजेश जी, इसलिए ऐसे समझिए कि 68 लग रहा है, 69 लग रहा है, 69 नहीं लग रहा है, 69 भी लग रहा है, 69 लग रहा है, और भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसी का भाग्य और दुर्भाग्य तय हो रहा है इससे। अगर आपने किसी केस में, जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे जो जितने भी केस ज्यादातर में 115 बीबी गलत क्यों लगा, क्योंकि आपने 68 to 69 गलत लगा दिया। वो जहां 68 to 69 नहीं लग सकता, यही कोर्ट कह रही है अलग अलग जगह पे। तो आप सोचिए कि 68 सेक्शन क्या, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, खिवानी जी, वेयर एनी सम इज क्रेडिटेड इन द बुक्स and that sum is not offered for tax and when which you are claiming as capital account. See, section 68 cannot apply to revenue account transaction which you have already offered for tax. You may note it. आप कहेंगे ये कहां से पढ़ रहे हैं गोयल साहब, 68 सेक्शन रेवेन्यू अकाउंट पे नहीं लग सकता। इसकी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो सेक्शन 68 के जब 1922 एक्ट में ऐसा सेक्शन नहीं था, 1961 में आया पहली बार, और उसके बाद भी जब चेंजेस हुए जो 2012 में और 2022 में शेयर कैपिटल को लेकर और लोन और बोरोइंग को, जिसमें सोर्स ऑफ सोर्स समझाने की बात कही गई। आर यू देयर खिवानी जी? जब 2012 में अमेंडमेंट आई थी तो उन्होंने कहा शेयर कैपिटल के लिए राजेश जी 68 में आप सोर्स ऑफ सोर्स बताएं, और 2022 में कहा लोन और बोरोइंग के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं। तो आप सोचिए इस बात से क्या निकल के आया कि इस सेक्शन के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आ रही है, या वो ट्रांजैक्शन आ रही है जिसको करदाता खुद रेवेन्यू अकाउंट नहीं मान रहा, जो खुद ऑफर नहीं कर रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो डिपार्टमेंट नहीं समझ पा रहा है सर। करेक्ट। और ये बात मैं कैसे निकाल रहा हूं? मैं एक्ट से निकाल रहा हूं, अभी मैंने कोई जजमेंट नहीं पढ़ा आपको अभी तक। मैंने 2 अमेंडमेंट आपको बताई फाइनेंस एक्ट 2012 ने जो करी थी, जब प्रणब मुखर्जी साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें उन्होंने शेयर कैपिटल के लिए फर्स्ट प्रोवाइजो डाला था, एक प्रोवाइजो की सोर्स ऑफ सोर्स बताना पड़ेगा, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी होगी जो शेयर होल्डर से पैसा ले रही है। फिर उन्होंने अभी 2022 में मैडम ने, ऑनरेबल एफएम निर्मला सीतारमण मैडम ने 2022 में जो संशोधन किया था कि लोन और बोरोइंग के लिए भी आपको सोर्स ऑफ सोर्स बताना पड़ेगा। तो ये लोन, बोरोइंग, शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो हम अदरवाइज रेवेन्यू अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या निकला? क्या ये रेवेन्यू अकाउंट ट्रांजैक्शन पे लग सकती है जिसको आप ऑफर फॉर टैक्स कर रहे हैं? नो नो सर, नो। बस ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। यही सबसे बड़ा कैच है आज का, कि रेवेन्यू जो हमने ऑलरेडी ऑफर कर दी उस पर नहीं लगेगा। तो सेमिनार खत्म हुआ क्या सर? गुरवाल साहब अभी तो बहुत सारे सर आपके हैं छुपा रखे हैं, आपने अभी बताने हैं आपने बहुत सारी चीजें। नहीं, ये बात मैं जब देखो क्या होता है, ये मैं अपनी मानता के लिए नहीं बोल रहा, ये मेरे को खुद भी नहीं पता लगता। कई बार जब मैं बार बार आपका पढ़ता हूँ, मैं आपके सेमिनार में आता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें खुद नहीं पता चलती है। मेरे को बोलने में और मानने में बिल्कुल इस बात का मुझे फक्र भी है, और आई एम हैप्पी फॉर दैट। आई कांट से कि मुझे इससे पहले ही सब कुछ पता होता है। कई बार मैं बोल रहा होता हूँ तब भी मेरे दिमाग में आती है बहुत सारी चीजें जो मुझे पहले पता ही नहीं होती मेरे अनुभव में, जितने भी मैं केस कर लूं। हालांकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मानी जी सेमिनार इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग। सी, आई रिस्पेक्ट दैट सेंटीमेंट, बट आई एम टेलिंग यू माय हम्बल, आप लोग बड़े हैं। जैन साहब क्या होता है, इतना मुझे 15-20 साल प्रैक्टिस करते हुए, पर मैं देखता हूँ जो काम हम एकेडमिक के नाते कई बार किसी चीज को कर रहे होते हैं ना, तो उसका भाव अलग होता है, और उसमें कई बार जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो बिल्कुल अलग लेवल पे होता है। मेरी बात को क्षमा करिएगा अगर मैंने कोई बात किसी की चांद में गुस्ताखी करी हो, ये मेरा भाव, हम्बल भाव है, विनम्र भाव। शिवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे भाव के ऊपर? सर सॉरी सर अनम्यूट करो पहले, म्यूटेड हो आप। शिवानी साहब अनम्यूट करो, शिवानी साहब अनम्यूट करो, आप म्यूटेड हो। वो म्यूट पे सर, आप म्यूट पे हैं। एक मुझे किस्सा याद आ गया, जैसे खिवानी साहब अनम्यूट म्यूट हो जाते हैं ना, हमारे जज साहब भी कई बार क्या होता है हाईकोर्ट में गलत जाता है, वो म्यूट अनम्यूट हो जाता है। सॉरी, बोलिए। सॉरी खिवानी जी। हाँ नहीं, मैं आपकी सुन रहा हूँ, बीच में डिस्टर्बेंस आ गई। मैं कह रहा था मेरे भाव को आपने सुना, मैंने जो कहा ठीक कहा नहीं कहा सर? नहीं, मैंने सुना ही नहीं, मैंने बीच में बंद हो गया। मैं ये कह रहा था सर कि मेरा हम्बल भाव ये था कि जब हम कई बार किसी चीज को एज एन एकेडमिक्स पढ़ते हैं और कई बार जब प्रैक्टिस में पढ़ते हैं तो दोनों में अंतर आ जाता है, और एकेडमिक को पढ़ने से हमें बहुत सारी चीजें अच्छी प्राप्त होती है। मैं अपने लिए बोल रहा था कि मैं जब आपके लिए आता हूँ बात करने के लिए, तो मुझे बहुत सारी चीजें अपने आप से नहीं जानने को मिलती है जो मुझे पहले पता ही नहीं होती, इतना आर्ग्यूमेंट करने के बाद, केसेस आर्ग्यू करने के बाद। बिल्कुल, सीखने को बहुत कुछ मिलता है जब भी आप बोलते हैं। That is the point. Anyhow, Section 68 is now engulfed and loaded with, इसका एक भाव तो राजेश भाई ने ऑलरेडी कैच कर लिया कि it applies to capital account transaction which is otherwise not offered to tax. तो कुछ लोगों ने कहा कि गोयल साहब जो ट्यूशन फीस दिखा रखी है रिटर्न इनकम में ट्यूशन फीस सुनते ही कुछ अजीब सा याद नहीं आया आपको?
कुछ इनकम अरे दिखा, साहब, जैसे सिलाई की, स्टिचिंग की, एक्सेट्रा। तो उस हाँ पे, और वो तपेश त्यागी मैंने आपको भी बता दिया पहले ही। आपने तो नहीं, आपके पिताजी ने बहुत देखी होगी ट्यूशन इनकम। नहीं, मैंने भी बहुत बढ़िया सर, मैं पापा के साथ जब काम करता था, रिटर्न भरता था, जब मुझे उन्होंने काम सिखाया, यू हैव राइटली सेड इट। उनकी जब मैंने बहुत सारी रिटर्न भरी तो उसमें बैक सी वहां क्या होता था, नहीं भी मैं बता रहा हूँ, सॉरी भी, वहां तो लाला जी आते हैं, कह रहे साहब हमें इतना टैक्स भरना है, उसके हिसाब से इनकम बैकवर्ड कैलकुलेट कर। मैंने जैन साहब, ऐसा नहीं है भूल गया, कोई आईटीटी का वकील बन गया, हाईकोर्ट का, मुझे मैं आई कांट फॉरगेट माय रूट सर। सर मैं एक आपको एक बात और थोड़ी देर। बताएं कि बहुत सारी मैंने रिटर्न्स भी देखी हैं। वो हाँ। क्या करते हैं सर, अदर सोर्सेज में अदर इनकम डाल करके छोड़ देते हैं बस। सर वो हाँ बड़े, ये। सॉरी, ये जो उन लोगों को थोड़ा अपना पार्किंग, जैसे गाड़ी पार्क करते हैं आप कहीं पर और सेफ हाँ ढूंढते हैं, पार्किंग हमेशा सेव करिए, राधे राधे। और पार्किंग का ये मतलब हेड ढंग से चुनिए, और इनकम का कुछ कुछ, सॉरी शिवानी जी, उसमें आप उसका कहने का कि वो कहाँ फॉल करती है, उसका क्या नेचर है, थोड़ा बहुत मशक्कत करिए। ऐसा नहीं बोल दीजिए कि नहीं अदर सोर्सेज के अंदर अदर आती है, फिर पूछे तो नहीं हम नेपाल गए थे वहां गैम्बलिंग की इनकम जीती है, ये कौन मानेगा आपका? नहीं, ये जो राजेश जी ने बोला मिसलेनियस इनकम दिखा देते हैं, तो हाँ। एक ऑफिसर ने मेरे से शैतानी कर दी थी। मैंने हम्म। कहा ये मिसलेनियस इनकम के लिए हम भी तैयार है, आपकी लेडी का केस था। तो हाँ, मैंने उसके बाद से कभी मिसलेनियस इनकम नहीं दिखाई। तो मेरी बात तो हम्म। शिवानी जी मैंने ने फिर बहुत अच्छे से, हाँ बिल्कुल सही मैंने किया। सत्संग इनकम दिखाई कि पार्क में बैठ के सत्संग करते हैं, वहां से कलेक्शन हो जाती राधे 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 वंडरफुल आइडिया सर। राधे। ये ये कैच शिवानी जी ने दिया है, मेरा नहीं। हाँ। है। वो उस ऑफिसर ने बड़े प्यार से कहा कि इस मिसलेनियस इनकम में मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये यार, तो सच, मेरे ये तो आपने मेरे बहुत ही अच्छा जेस्चर है, बहुत ही अच्छा जेस्चर है, वेरी स्वीट। मेरे क्लाइंट के किसी का कैरेक्टर रूल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने सत्संग इनकम दिखानी शुरू कर दी। क्या बात है। चलिए सर, anyhow 68 में I was discussing sir, sorry शिवानी जी, there were two provisos added now, फाइनेंस एक्ट 2022 वाला प्रोवाइजो मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ सर, उससे आप सावधान रहे। पता नहीं राजेश भाई हम सब लोगों ने उसको कितना ध्यान से लिया है और ले रहे हैं। That's proviso to section 68 as added by Finance Act 2022. There is a CBDT circular which you all of know can note. This amendment is explained by CBDT. This section 68 वाला जो proviso है लोन पे आया, सर्कुलर नंबर 23/2022. You can note the circular number. Explanatory memorandum circular number 23/2022 dated 3rd November 2022. I repeat, circular number 23/2022 dated 3rd November 2022. And this is paragraph, thank you Chaudhary ji, and paragraph 16, 16.1, 16 to 16.6. Now this, Rajesh bhai, why I am discussing this very importantly, you all of should note my point very carefully. See, this amendment has been made by Finance Act 2022. Circular paragraph 16.6 says applicability. This amendment is effective from 1st April 2023, that is assessment year 23-24. आप कहेंगे गोयल साहब इससे क्या बात निकल रही है, बताइए। इससे ये निकला सर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लैंडमार्क पॉइंट, जो असेसमेंट ईयर 23-24 से पहले हमारे जितने भी केस हैं जिसमें लोन का एडिशन हुआ है बोरोइंग का 68 में, और जिसमें डिपार्टमेंट ने वो काम जो 23-24 के बाद कर सकते हैं वो 23-24 से पहले के सालों में करा हुआ है, वो एडिशन सिर्फ इसी बात पे डिलीट होंगे कि ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 22 ने प्रोस्पेक्टिवली करी। May I repeat what I said? The amendment which is made in section 68 qua loan addition for source point has been made applicable from AY 23-24. The other additions which have been made, earlier additions prior to this AY on this same point, they cannot stand now for even moment. And we have fought one case in Delhi ITAT, and it's a wonderful order to read, at least Balwan Singh, authored by Mr. Anubhav Sharma. Balwan Singh. Now it's a Delhi ITT order, Shivani ji. I was arguing this case before Delhi bench of ITT. The issue was this regarding section 68 being applied in cases of loans received by Mr. Balwan Singh for AY 14-15. इसका ऑर्डर का नाम नोट कर लीजिए, ITO वर्सेस बलवान सिंह। बलवान सिंह डेटेड 7 अगस्त 2023, ITA नंबर 2869 del 2019. Now this order paragraph number 7.2 I may read, which is very practically relevant, Rajesh Agarwal ji.
Para 7.2 of this TITT order says the 2022 amendment in 68 takes effect from 1st April 23 and applies from AY 23, 24 and subsequent year. The amendment is the illustration of application of mischief rule in interpretation of statutes. Memorandum explaining the amendment makes it clear that amendment is proposed to remove doubts created by certain judicial ruling about the onus of proof of source of source. The principle may have been there in certain judgments in favor of revenue, but now once the amendment has been made applicable to principles, the principles with effect from AY 23-24, the bench cannot apply retrospectively. So I am of the view, Khimani ji, there are many cases which we are practically facing for other earlier years, जहाँ 68 का लोन का एडिशन सोर्स ऑफ सोर्स पे इस अमेंडमेंट के पहले वाले सालों में हुआ है. तो हम इस बात को कहकर कि अमेंडमेंट अगर बाद में आई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. एनीहाउ, अब इस अमेंडमेंट को लाने का पीछे का रैशनल वो पैरा 16.3 में लिखा है, मैं क्रक्स में बता रहा हूं समरी में. इट इज नोटिस दैट देयर इज ए पेरिनिशियस प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनअकाउंटेड मनी बाय क्रेडिटिंग इट टू द बुक्स थ्रू ए मैस्करेड ऑफ लोन और बोरोइंग. तो इसका मतलब ये हुआ जैन साहब, ये अमेंडमेंट इसलिए लाई गई कि जिन लोगों ने एंट्री टाइप का कुछ काम लोन लेकर कर लिया और उसको अनअकाउंटेड इनकम को लोन की फॉर्म में. आप कहेंगे इस बात का क्या पर्पस है भैया, पुलिस से बताने का? इसका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है सर. मेरे हिसाब से खिवानी जी, अगर लीगली बोला जाए, मेरा हम्बल सबमिशन ये कि ये अमेंडमेंट प्रोवाइजो वाला जब तक नहीं लग सकता कायदे से, जब तक डिपार्टमेंट ये प्रूव ना कर दे कि एसएससी ने कुछ अनअकाउंटेड मनी लिया है इन गार्ब ऑफ लोन और बोरोइंग. जबकि डिपार्टमेंट कभी ऐसा नहीं करता. डिपार्टमेंट सारा ओनर्स शुरू से लेकर आखिरी तक, जब तक धरती का अंत नहीं आ जाता, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो सारा ओनर्स एसएससी पे ही रहता है परमानेंट अनशिफ्टिंग. जबकि ऐसा सही नहीं है. मेरा कहने का भाव ये था, एक भाव तो बलवान सिंह वाला हो गया और प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट वाला. एक भाव ये है कि इस अमेंडमेंट को लगाने के लिए अनअकाउंटेड मनी देखा जाएगा. अब किसी के पास अनअकाउंटेड मनी गुंजाइश ही नहीं करने की दूर दूर तक, तो आप लगा देंगे उस पे मनी. एनीहाउ, अब आप कहेंगे गोयल साहब इस अमेंडमेंट को अगर हम लिटरली पढ़ते हैं तो सर इसमें ये बड़ा खतरनाक ओनस आप पे डाल दिया 1/4/22 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 से, असेसमेंट ईयर 23-24 कि आपको हमारे को अभी तो लागू ही अमेंडमेंट पूरा. और ये अमेंडमेंट लगने का मतलब ये है कि राजेश भाई इस प्रोवाइजो में अगर आप फंस गए तो 115 बीबी परछाई की तरह आ रहा है आपके पीछे, काला साया, सॉरी, लग जाएगा. तो बात ये निकली भाई साहब, पहली बात तो आप लोन और बोरोइंग नोट करिए. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं. आप इस प्रोवाइजो को लगाने के लिए इसमें फॉल क्या करता है, इसमें वर्ड क्या लिखे हुए हैं, आप एक्ट खोल के देखेंगे. सेक्शन 68 के इस प्रोवाइजो में वर्ड लिखे हुए हैं लोन और बोरोइंग और एनी सच अमाउंट. लोन का क्या मतलब होता है, बोरोइंग का क्या मतलब होता है, और सच अमाउंट क्या होता है बताइए. लोन क्या होता है? लोन का मतलब तो होता है जहां एक लेंडर है, जहां बोरोवर है, एक लेंडर है. लोन मतलब रिलेशनशिप ऑफ बोरोवर लैंडिंग. मान लीजिए बोरोवर लैंडिंग की रिलेशनशिप नहीं है तो आप लोन मान लेंगे, किसी हर एक चीज को लोन मान लेंगे. लोन का एक कॉनोटेशन है, हमारे अकाउंट्स में भी होगा, शेड्यूल 6 में, और इंस्टीट्यूट के किताब जो हमारा सी इंस्टीट्यूट का मोनोग्राफ वगैरह होते हैं उनमें भी होगा, और ब्लैक लॉ में भी है. और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिखवा रहा हूं जिसमें लोन का मतलब डिफाइंड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आर.के. अग्रवाल साहब का, जिसमें लोन का मीनिंग है 404 ITR पन्ना नंबर 1, लोन, बोरोइंग और सच अमाउंट. अब खिवानी जी खेल क्या हो रहा है, मतलब बात क्या हो रही है कि सच अमाउंट क्या है मिस्टर गोयल? सच अमाउंट में एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल आ जाएगा? नहीं. और जो बाद में जाकर सेल में दिखा दिया गया है. Yes, that is true. उसके ऊपर तो काफी केस लॉ है कि सब once you're doing credit to revenue, even though in पहले भी बोली बात ना, इसलिए तो इसमें नहीं रेवेन्यू अकाउंट ट्रांजैक्शन वाला जो बात, मैं बात ये कह रहा हूं, इस अमेंडमेंट के आने के बाद डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि सच अमाउंट में क्या आता है. करेक्ट. सच अमाउंट में वही चीज आएगी जो लोन और बोरोइंग का, जिसको नाम नहीं दिया गया बट वो है नेचर लोन और बोरोइंग की. एडजम जेनरस जिसको हम बोलते हैं, मेरे हम्बल सबमिशन में हम इसको एडजम जेनरस से पढ़ेंगे. मतलब जो चीज, जैसे किसी को आपने किसी का नाम लोन और बोरोइंग की जगह कुछ और रख दिया, बट कोई चीज है ही नहीं लोन और बोरोइंग की नेचर की, वो नहीं आ सकती इसमें मेरे हम्बल सबमिशन. नहीं, इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आई टेक एन एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अल्टीमेटली प्रॉपर्टी इज नॉट सोल्ड, तो दैट बिकम्स लोन और बोरोइंग. एक सेकंड शिवानी जी, एक सेकंड सॉरी यार, ये मेरे एक मिनट, हमारे दोस्त कुछ, ये मेरे 404 ITR पेज 1 महिंद्रा एंड महिंद्रा था. हाँ यस, महिंद्रा एंड महिंद्रा. सॉरी, क्या बोल रहे थे आप? सॉरी, क्या बोल रहे थे? सॉरी. जैसे एडवांस लिया अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मशीनरी सेल या कार सेल, और बेची नहीं कार और वो पड़ी रही है, एडवांस भी बढ़ा रहा,
So that will be covered by loan as such borrowings. Yes, yes, yes. You are absolutely. So that is a camouflaging your transaction. So therefore, that's it. So, but to see, bring under, see, this is a very serious issue here. Department cannot treat every and any other amount as loan or borrowing by default. तो मेरा पहला पॉइंट था असेसमेंट, ये अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम AY 23-24. इट हैज, हम इसको इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट ये था कि इसको लाने का जो पर्पस था वो क्या है. तीसरा पॉइंट हमने जो बात की, लोन, बोरोइंग और एनी सच अमाउंट को तमीज से पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर मैनर में. चौथा पॉइंट मैं कह रहा हूँ, चौथा पॉइंट सर, अब हम क्या सजेस्ट करेंगे. कोई एसएससी मेरे पास आता है, जैसे कोई आदमी आता है, शिवानी साहब और जैन साहब, और वो बोलता है गोयल साहब, मान लीजिए मेरे फादर मुझसे पूछते हैं कि बेटा मैं किसी से लोन ले रहा हूँ आज, तो आप मुझे बताओ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मेरे को अपना ओनर्स डिस्चार्ज करने के लिए, प्राइमरी ओनर्स, क्या केवाईसी मेंटेन करना चाहिए. चलिए बताइए राजू. तो केवाईसी तो है ही है. अरे मेरे को अपने पिताजी को आंसर करना सर. पूछ रहे हैं कि भैया बताओ, और कल को नहीं बताऊंगा 115 बीबी लग गया तो मेरा तो क्या बोलेंगे वो. कहने शिवानी जी फोन नहीं उठा रहे और क्या बोल दो. वंडरफुल रिप्लाई सर. यही तो शिवानी जी की, मैं ऐसे नहीं कहा, लवली, बहुत ही लवली, बहुत ही लवली पर्सनैलिटी, गॉड ब्लेस हिम. होगा नहीं, वो भी मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, उन्होंने मुझे वकालत सिखाई है. मैं ये सब बातें उनको नहीं बोल पाऊंगा, और मैं बोलूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए मैं वो नहीं कर पाऊंगा प्रयोग. मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मुझे उत्तर दीजिए इस बात का कि अब हमें किसी को बताना है कि साहब ये 68 का ओनर्स कैसे डिस्चार्ज हो, लोन वाला, खासकर लोन का 1/4/22 के बाद. ये बहुत ऐसे करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि राजेश भाई रोज लोन लेते लोग, हजारों लेते हैं. अगर जब मैं किसी से लोन में क्या है आजकल लेता है तो डेफिनेटली टेल हिम कि ये आधार कार्ड पैन कार्ड तो है ही है, बट आई नीड द पासबुक, और उस पासबुक में इमीडिएटली पैसे कहाँ से आए, इवन इफ इट इज एफडी. अब यही रुकिए, अब यही रुक जाइए बस. राधे राधे. मैं यही सुनना चाह रहा था आपके मुंह से कि गोयल साहब, इन्होंने क्या बोला, अग्रवाल साहब, इन्होंने कहा कि हम उस आदमी से जिससे लोन लेंगे, कहेंगे तुम हमारे को लोन दे रहे हो, बहुत अच्छे हो, हमारी मदद कर रहे हो. कपिल गोयल ने कहा, मैं पासबुक दिखाओ. नहीं, मैं सेमिनार करने आता हूँ राजेश अग्रवाल जी के यहाँ इतनी बार पूसा रोड पे इन पे, और ये इनको खिमानी जी को, जैन साहब को पकड़ा कि मेरे को जरूरत है, कुछ पैसे दे दो उधार पे. इन्होंने दया करके कहा, दे देते जैन साहब ने, अग्रवाल साहब ने, खिमानी जी ने. अब मैं खिमानी जी को इनको कह रहा हूँ, भैया तुम बड़े दयावान हो, पैसे तो दे ही रहे हो लोन के, साथ में काम और करो, अपनी बैलेंस शीट और अपना पीएनएल पासबुक और दे दो, ये पैसे कहाँ से लाए हो ये भी बता दो. अरे तुम बड़े बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम तो पैसे क्यों भाग जा. अरे पैसे वापस करो मेरे. तो ये आप जो है, अरे आप सोचिए सर, ये मैंने बोला ऐसे, पर इंस्टीट्यूशनल बोरोवर है आपके. अगर मैं लोअर लेवल की बात छोड़ के मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर पे आ जाता हूं, सुपर ऑर्गेनाइज सेक्टर पे, जहां इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग हो रही है, आप हिमाकत कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूशनल लेंडर से उसका ये सब मांगने की. सर आप टर्म डिक्टेट कर ही नहीं सकते. अरे आप आप नॉट इन ए पोजीशन. दिस इज द, हाँ, ये बात एक और प्रैक्टिकल अग्रवाल साहब ने बिल्कुल सही हमारी बात की, जो मैं लाना चाह रहा था छोटे पे, कि जब बोरोवर कोई चीज मांग रहा होता है तो उससे लेंडर की जो सिचुएशन होती है उस समय, जो उसका होता है, नहीं, थोड़ा सा इसमें संशोधन करें कि आप पैसे ले लीजिए, वापस करने से पहले सब कुछ मांग लीजिए, सब कुछ देगा वो. सर आपको पता नहीं, हमारे को पता नहीं ना, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट खिमानी जी, यहाँ कैच हो रहा है कि हमें तो पता नहीं हमारा केस फेसलेस में किन साहब के पास जा रहा है, वो कितना क्यूरी से कौन से केस को सोर्स ऑफ सोर्स सेटिस्फाइड मानेंगे. सी देने से पहले मुझे एक कागज, मेरे कुछ सेटिस्फैक्टरी तो चाहिए होना चाहिए. बात है बहुत ज्यादा. सी सर, had these amendments and sections, sorry, had this section in which this proviso been added, Khimani ji would not have been tagged and connected intrinsically to 115 बीबी. सब ये डिस्कशन इतनी ज्यादा मैं इस लेवल पे नहीं कर रहा होता, बट आज जिस तरीके से 68 को 115 बीबी से कनेक्ट किया हुआ है, और जो फेसलेस असेसमेंट हो रही है, लोन हम रोज लेते हैं, ऐसा नहीं है कि और बहुत आम आदमी ले रहा होता है. और ये जो सेक्शन जिसमें आपने आप पढ़िए 68 का प्रोवाइजो, एक बार मैं पढ़ता हूँ उसको, क्या लिखा है सर उसमें. ये नहीं लिखा उसने कि क्या देने से सेटिस्फाई हो जाएगा, वो फिर उसको सब्जेक्टिव टर्म्स में यूज कर रहा है. उसमें बहुत एक बेसिक नॉलेज के साथ में हमारी जो जितनी भी नॉलेज है, जितने भी एक्सपर्टीज है ओवर द इयर्स, हम उसके बेसिस पे जो डॉक्यूमेंट्स लेके अपने सेटिस्फैक्ट्री कर लेते हैं, तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ओनर्स डिस्चार्जिंग का हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाता है. आपकी बात में ये बात बहुत अच्छी है, और इसके बाद जो रह जाता है वो फिर अगर वेदर
ITO doesn't accept it, the court said they have to accept it कि एक reasonable You are हद तक right. इसने You कर are दिया है। you are right. अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं. I appreciate and I accept your proposition. इसमें एक बात और भी है, इसके बाद मैं कहता हूँ कि जी आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो 131 इशू करके आप उसको बुला लो, एंड देयर इट इज अपॉन हिम टू। एक मिनट आप यहीं रुकिए. प्रैक्टिकली क्या हो रहा है शिवानी जी? द लाइफ इज नॉट दैट इजी. इफ यू व्हाट यू आर सजेस्टिंग, यू आर राइट कि अब हमें अपने आप को सवारी अपने सामान की जिम्मेदार है और अपने आप को तंदुरुस्त और हेल्दी रखना है, इस 68 के उससे प्रभाव से बचाना है, तो हम कुछ तो केवाईसी करेंगे और इसीलिए मेरा प्रश्न है और इसलिए हमारा उत्तर भी है। तो किसी आप लेकर रख लो उसकी पासबुक, अगर दे दे तो, और नहीं मिले तो सवारी अपने सामान की रिस्क अपने आप ले रहा हो, और उसको जो बचाया भगवान, हम नहीं चाहते उसके ऊपर 68 लगे 115 भी, हम कोई नहीं चाहता, सॉरी। बट अब क्वेश्चन यहाँ एक एक्सट्रीम पे जाकर मैं बात क्या कर रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट का टेम्परामेंट रहा है इसके आने से पहले ही रहा है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसके आने के बाद क्या आलम होगा। अब 23-24 की जब असेसमेंट होंगी दादा, उसमें आप खिमानी जी अब समझिए, वो तो ये कह रहा है कि साहब आपने पासबुक लेकर क्या किया, ये तो कुछ भी नहीं लिया आपने। आपको तो पहले ये भी समझना ही पड़ेगा, पहले एक से एक टैगिंग करानी पड़ेगी जिसका पैसा वो दे रहा है, और उसको अपने हाथ में अगर उसको टैक्स देना चाहिए था वो टैक्स दिया नहीं दिया उसके ऊपर। मतलब बोरोवर को लेंडर के सारा ड्यू डिलिजेंस करके उसको सारे जो लेंडर के गले के सांप है वो बोरोवर के गले में आ गए, और बोरोवर ने अगर लोन ले लिया और लेंडर ने कंप्लायंस नहीं किया टैक्स का, तो वो सारा कंप्लायंस 68 का प्रोवाइजो किससे करा रहा है? I agree with you, but basically the purpose of this was कि जो एंट्री बाजी है वो खत्म हो गई। और तो भाई एंट्री साहब आप सोचिए, अगर मेरी वो बात आप जो बोल रहे हो, आप तो समझ रहे हो खिमानी जी, एंड यू आर अप्रिशिएटिंग, आई थैंक टू यू, आई एम टेलिंग, एंड दैट्स व्हाई आई सबमिटेड कि अमेंडमेंट उसके पर्पस से बाहर नहीं लगनी चाहिए, उसके जो लेजिस्लेटिव इंटेंट के और मिसचीफ के बाहर, और जो बलवान सिंह में अनुभव शर्मा जी ने हमारी बात मानी भी। बट मैं आपको कह रहा हूं कि जिस तरीके से डिपार्टमेंट आज सेक्शन 68 लगाता है, कोई भी सेक्शन लगाता है सर, वो कहता है हम तो प्लेन, जहां आपको टैक्स लग रहा है प्लेन रीडिंग में नहीं है तो भाड़ में जाए आपका पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन, सॉरी। और आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है कि गोयल साहब उसके बाद अगर कोई गलत करता है तो हम, जिसके लिए कपिल गोयल जैसे लॉयर है, उनके पास कोई आएगा, उनको दक्षिणा देगा, उनको पैसे मिलेंगे और उनको फीस मिलेगी, उनके कॉफर रिचर होंगे, वो सब बातें अपनी जगह सही है। बट इससे लगने से कितनी सारी इंजेन्युइन ट्रांजेक्शन पे लगना चाहिए अगर धर्म से सब चले, पर जो बोनाफाइड इनॉक्यूअस ट्रांजेक्शन पे अगर ये लग जाएगा और लगेगा, जो मेरी गट फीलिंग कह रही है, जिस तरीके से डिपार्टमेंट को देखते आए, बड़े हुए हैं और कर रहे हैं आज का, और आप मेरा 148 करने लग जाएंगे, आप हर एक काम ही 68 के प्रोवाइजो से करेंगे, क्योंकि जहां आपको बैलेंस शीट पे नजर आया इसने लोन और बोरिंग ले रखी है। जैन साहब बताइए, आप खोलिए अपना माइक, और उसमें लेंगे और 115 बीबी का जो सुआ है और लगा देंगे उसको, फिर क्या होगा? और फिर तो मुझे लड़ना है। अच्छा, आप इसका खिमानी जी एक और बात समझ रहे हैं? सी, हमने इतनी देर तक 115 बीबी डिस्कस कर लिया, 7 बजने वाले हैं। मैं राजेश अग्रवाल जी एक बात और कह रहा हूं, इस सेक्शन के लगने से जब डिमांड नोटिस आता है, आता है जो भी आया, और जिसमें 100% से ऊपर की डिमांड खिवानी जी निकली भी है, उसको जब तक मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, उसके बीच की जो जैसे आपको याद है, मतलब सबको पता ही है, हमको, आप सब बहुत बड़े हैं सर, जो गरुड़ पाठ होता है अपने यहाँ, उसमें एक वैतरनी नदी का एग्जाम्पल आता है। सॉरी, आप कहेंगे कहां से कहां करेक्ट, वैतरनी नदी पार करनी होती है भाई साहब, ये वैतरनी नदी है, ये जो 115 बीबी का डिमांड नोटिस आ गया, और उसके बाद जब तक आप जो बोल रहे हैं, आपको लकीली आपका प्रारब्ध के हिसाब से अच्छा जज नहीं मिला जो आपको इसकी 115 बीबी से बाहर लाए, उस डिमांड नोटिस को अपने सर पे रख के चलने वाला जो करामात है, वो भाई साहब मैं तो बता रहा हूं, अगर मेरे पर खुदा ना खास्ता कभी गलती से लग गया, मैं आपको बोल इतनी बातें रहा हूं और आप लोगों को बढ़ाता हूं, मैं भी नहीं सह सकूंगा, मैं हम्बली बोल रहा हूं, क्योंकि वो 20% मांगेगा उसका पहले तो। बिल्कुल भाई साहब उसका 20%, आप उसका 2% भी नहीं दे सकते, सॉरी 20% तो छोड़िए, क्योंकि वो ग्रॉस रिसीट पे लगा हुआ है। मतलब मैंने जो दिया था 43 वाला 68 में एडिशन कर दी, और टोटल 9,70,00,000 की एडिशन है। आप बोलेंगे 15 करोड़ की डिमांड है। यू आर राइट सर, नाउ आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट कि इफ मिस्टर गोयल वी डोंट गेट द रिलीफ एज लर्नेड खिवानी जी हैज राइटली सेड कि मिस्टर गोयल डेफिनेटली, जैसे आईटीटी में लोग छूट रहे हैं, जब तक तो आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तब तक की बात है, और जब तक सीआईटीपी भी आपको अच्छा नहीं मिल रहा फीसलेस में, जब तक के लिए हम डिमांड को इस 115 बीबीई वाली डिमांड को फोकस करके मैं क्वेश्चन भी रेज कर रहा हूं साथ में, उसको बचने के लिए हम क्या करें? मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं सर इसमें बिना कुछ ज्यादा आगे करे, 220 सबसेक्शन 6 में जब भी आप स्टे पिटीशन बनाए 115 बीबीई वाली, उसमें ये जरूर अलग से हाईलाइट करें सर कि आपकी रिटर्न इनकम में जो मल्टीपल टाइम्स वेरिएशन हो गया, और उसमें जो डिमांड आपकी निकल गई वो हाई पिच असेसमेंट की कैटेगरी में आ रही है। वर्ड यूज्ड इज हाई पिच असेसमेंट, not only high pitched, unduly high pitched. 71 times the return income. Yes, multiple times. And for that, you can always use the judgment of Mr. Padiwala, Justice Padiwala, who was there at that time. Now he's a Supreme Court judge in Gujarat High Court.
हर्ष दीपक शाह, ये ऑर्डर आप सब नोट कर लें। 115 बीबीई की डिमांड के ऊपर स्टे के लिए जो मेरा फेवरेट फैसला है वो है हर्ष दीपक शाह, गुजरात हाई कोर्ट। इट्स ए रिपोर्टेड जजमेंट इन समवेयर इन आईटीआर। द साइटेशन इज 444 आईटीआर 184, 444 आईटीआर पेज नंबर 184। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 1% भी पैसा नहीं मांगा जाना चाहिए। जहां मेरी अभी ओपिनियन ये है कि राजेश भाई, जिसमें 115 बीबी लगाया गया उसमें जब तक फर्स्ट अपील डिसाइड नहीं हो जाती तो 1 रुपया भी नहीं मांगा जाना चाहिए। मेरा ठीक बात। और डिपार्टमेंट मानता नहीं है। डिपार्टमेंट तो रिकवरी करने के लिए रिकवरी सर्वे, बैंक अकाउंट फ्रीज, फलाना ढिमकाना सब कुछ। अच्छा, अब शिवानी जी, हमने 68 का जो प्रोवाइजो था वो तो डिस्कस कर लिया। एक बात और जो मैं संक्षिप्त में कहूंगा क्योंकि ये टाइम कब का डिसीजन है? गुजरात हाईकोर्ट का रिसेंट ही तो है। हाँ, ये रिसेंट डिसीजन है सर। ये डिसीजन है 2022 का सर, 21 का। हाँ, ये पड़ा हुआ है। जब ये जब एलिवेट हुए साहब उससे पहले का ही है। गुजरात हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बने उससे पहले का डिसीजन। हाँ, पड़ा हुआ है। आई हैव अप्लाइड इट समवेयर। हाँ, इट्स अ वेरी यूजफुल ऑर्डर। इसमें आपको स्टे पिटीशन को बनाने के लिए बहुत कुछ अच्छा मिल गाइडलाइंस मिल जाती है पूरी। अब मैं ये कह रहा था अग्रवाल साहब कि 68 तो लग गया अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट पे, पर आपकी जैसे डिपार्टमेंट इस बात को सेग्रीगेट कैसे करेगा कि कौन सा 68 का है जैन साहब, कौन सा 69 का है, कौन सा 69 का है? 5 रास्ते हैं, 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D। अब आपको इसमें बड़ा संयम बरतना है डिपार्टमेंट। अब जो हो नहीं रहा प्रैक्टिकली, और लॉ क्या, मैं दोनों चीजें बता देता हूं संक्षिप्त में। 68 applies to the case where there is books of accounts and there is a sum credited in that. 69 applies when there is investment and the investment source is not explained. So 69 cannot apply in that situation where there is no investment at all. हर एक जैसे इन्वेस्टमेंट आप कहेंगे, एग्जांपल दीजिए। अब आपने किसी केस में इन्वेस्टमेंट आप किसको बोलते हैं? खर्चे को इन्वेस्टमेंट बोल देंगे आप? नहीं। जैसे मैंने बोला आपने किसी को लोन दे रखा था, पहले वो लोन वापस आ गया तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी जब वापस आया लोन। कोई सॉरी, anybody who will have minimum understanding cannot say, जैन साहब, कि loan return is investment. So to say something is investment has to come within the four corner of the word investment. जब मैंने ब्लैक मनी लॉ का पिछले हफ्ते हमने बात करी थी तो उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट वर्ड को बहुत डिटेल में समझाया था। यस। जो अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट असेट आउटसाइड, वहां एक वर्ड यूज था अनडिस्क्लोज असेट हेल्ड आउटसाइड इंडिया में, वर्ड इन्वेस्टमेंट यूज है ब्लैक मनी लॉ में सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। और यहां पर भी वर्ड इन्वेस्टमेंट यूज है 69 में, 69B में। तो खिवानी जी, ये बहुत बड़ा खेल है। देखिए, आप किताबों में एसएससी का सर्वे सर्च हुआ, कोई लूज डॉक्यूमेंट मिल गया, आप सिर्फ कागज मिलने से इन्वेस्टमेंट मान लेंगे? कागज में लिखे बिना उसको प्रॉपर पता कि कहां इन्वेस्टमेंट है, किस जगह में है, कब की गई है, और वो कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां उसने इन्वेस्टमेंट का रखा है। कैन यू एज्यूम देयर इज एन इन्वेस्टमेंट? That should be physically available, basically. So to say something is investment, it should have ingredients of investment. That is what I'm saying. 69. 69A applies जहां you are found to be owner of money and valuable article etc. मैंने एक राजेश भाई के यहाँ, मैं आज उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पहले कर चुका हूं। एक सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया अभी लेटेस्टली, जिसको हमने राजेश भाई के यहाँ डिस्कस भी किया था। उस केस का नाम है DN सिंह वर्सेस CIT पटना। DN सिंह, ये भी नोट कर लें आप सर। ये सारे सेक्शन 69, 69A, 69B, इसमें जस्टिस KM जोसेफ का और जस्टिस ऋषिकेश रॉय का जो ऐतिहासिक फैसला है, DN सिंह वर्सेस CIT पटना, 454 ITR 595, 454 ITR पेज नंबर 595, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 100 पेज का फैसला है खिवानी जी, और 69A ही डिस्कस है। बहुत दिनों बाद ऐसा पॉजिटिव फैसला आया है। जहां क्या फैक्ट से, एक एसएससी ने बाइट्यूमन सप्लायर था ये, और उसने बाइट्यूमन ज्यादा सप्लाई करने के बजाय कम कर दिया। उसके पास कुछ डिपार्टमेंट ने कहा इसने बाइट्यूमन अपने पास रख लिया, उसको 69A लगा दिया। तो जज साहब ने कहा कि भाई इसमें वर्ड ओनर लिखा है, क्या आप थीफ को भी ओनर मान लोगे? ये KM जोसेफ साहब ने एग्जांपल दिया हुआ है जजमेंट में। Thief cannot be owner. हाँ, 69A के लिए ओनर क्या है? फिर उन्होंने वैल्यूएबल वर्ड पर फोकस किया कि आप हर एक चीज को वैल्यूएबल मान लोगे। और फिर खिवानी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस सुप्रीम कोर्ट के क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी, लैंडमार्क, इपोकल ऑर्डर में क्या लिखी उन्होंने, ये सब बताया कि सेक्शनों को लाने का पीछे पर्पस ये था कि जहां कोई ब्लैक मनी मिल रही है वहां लाने के लिए। फिर वही बात ब्लैक मनी वाली, अनअकाउंटेड मनी वाली। अच्छा, डिपार्टमेंट ब्लैक मनी तो बताता नहीं है सर। जो किताबों के अंदर ट्रांजेक्शन है, और जो मैंने वो भाई साहब जो एसएससी के अंदर किताबों में कैश इन हैंड आ रहा है उसको 69 में जोड़ दिया। बताइए कौन सा गणित है सर ये, कौन सा फार्मूला है कि जो किताबों के अंदर रिकॉर्डेड असेट्स है,
अच्छा, बैंक अकाउंट जो डिस्क्लोज है, खिवानी जी बताइए, जो किताबों में बैंक अकाउंट डिस्क्लोज है उसमें जो डिपॉजिट है वो 69 में ऐड हो सकते हैं अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट? पैदा नहीं होता, नहीं होता। अब सर डीएन सिंह आपने नोट कर लिया, राजेश जी टाइम निकल जाएगा। एक ऐतिहासिक फैसला सर, जिसकी वजह से भी मैंने ये आज के अपने सेमिनार में मैंने सोचा था, और आप सब नोट कर ले सर, ये मेरा जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो 69A पे मुझे भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या। जब वो कोई डिसीजन पढ़ते खिवानी जी आपके माइंड में आता है ऐसा भी आया जी, ऐसी बात थी। अब मैं आ रहा हूं 69A पे, हालांकि ये लैंग्वेज ऊपर नीचे भी लिखी हुई है 69 69B में। 69A में लिखा हुआ है खिवानी जी, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड सच मनी, बुलियन, ज्वेलरी आर्टिकल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कोमा, इफ एनी मेंटेन्ड बाय। अब 69A में वर्ड यूज इज, और ये आगे पीछे भी है जैन साहब, क्या वर्ड है? बुक्स इफ एनी मेंटेन, इफ एनी मेंटेन, बुक्स इफ एनी मेंटेन। ये केस है दिल्ली हाई कोर्ट का हर्ष वशेश्वर चड्डा, हर्ष वशेश्वर चड्डा, हर्ष वशेश्वर चड्डा, और इसका जजमेंट का डेट है 12 दिसंबर 2023। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस गिरीश कटपालिया इज द ऑथर। हर्ष वशेश्वर चड्डा, HARSH, हर्ष, WASHESHAR, हर्ष वशेश्वर चड्डा, 12 दिसंबर 2023 दिल्ली हाई कोर्ट। और इसके नीचे का फैसला भी मतलब इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी उसका फैसले का दोनों का मैं साइटेशन लिखवा देता हूं। ITT के डिसीजन का ITA नंबर है, ITT का पहले ITA नंबर 123 बटा दिल्ली बटा 2021, ये ITT का ऑर्डर है। राजेश भाई दोनों नोट करने वाले जजमेंट है, बड़ी लैंडमार्क। 123 बटा 2021 दिल्ली ITT, 13 अप्रैल 23 का फैसला ITT, 13 अप्रैल 23 का। और दिल्ली हाईकोर्ट का सर ITA नंबर, दिल्ली हाईकोर्ट का ITA नंबर है 676 बटा 2023 और 12 दिसंबर 23 ऑर्डर के। आप सुनिए, हर्ष वशेश्वर चड्डा एक नॉन रेजिडेंट राजेश भाई, उन्होंने अपने इंडिया के किसी मतलब NRE जो बैंक अकाउंट होते हैं उसमें कुछ पैसा आया था, डिपॉजिट था सम, उसको डिपार्टमेंट ने 69A में ऐड कर दिया। तो ट्रिब्यूनल ने इस ऑर्डर में जो जिसको हाईकोर्ट ने सहमति दी है पूरी, उस ट्रिब्यूनल का पैराग्राफ पढ़ता हूं जो मैंने बोला कि मैंने कैसे क्यों बोला कि ये मेरे को आज तक पता नहीं थी बात। ITT says in para 8 and 9 of its order, in the facts of the present appeal, undisputedly the assessee is a non-resident, hence is not obliged to maintain any books of accounts in India. मतलब इसका मतलब ये था, वो कह रहे हैं कि ये जो असेसी जिसकी हम बात कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट है, इसको इंडिया में खाते रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और खाते रखने का रिक्वायरमेंट इंडिया में कहा इनकम टैक्स में 44AA रूल 6 है। आगे बढ़ते हैं, उसमें आगे उन्होंने लिखा एज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस असेसी इन इंडिया इज फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। So this is a fact that assessee is not obliged to maintain books, being non-resident and having only income of interest. Therefore, one of the conditions of section 69A is not satisfied, because even assume that the bank accounts are to be treated as books of accounts of the assessee, still section 69A would not be applicable as the transactions are duly recorded in the bank account. Thus, in our opinion, 69A would not be totally applicable. Therefore, addition under 69A are untenable, unsustainable, and are deleted on legal point itself. Now see what High Court says. वो कह रहे हैं ये बैंक अकाउंट ही मेंटेन कर रहा है सिर्फ, इसको तो खाता भी नहीं रखना है। 69A में तो वर्ड लिखा हुआ है बुक्स इफ एनी मेंटेन, तो बुक्स अगर लिखने की जरूरत ही नहीं है और बुक्स हो ही नहीं सकती, तो 69A खिवानी जी लग ही नहीं सकता। मैं अपनी बात कह पाया नहीं कह पाया हूं सर? बिल्कुल ठीक है भाई साहब। और पैरा 7 दिल्ली हाईकोर्ट का नोट करिए, बड़ा लैंडमार्क, जो आज तक मुझे नहीं पता थी डीमोनेटाइजेशन के पता नहीं कितने केसेस में कहां लग रहा है राजेश जी। इसमें लिखा है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि प्राइमा फेसाई, हम इस बात को हालांकि फुली कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट ये प्राइमा फेसाई दिल्ली हाईकोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने कहा मैरिट पे भी ट्रिब्यूनल का ओपिनियन सही है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डिपॉजिट दे दिया है, बट पैरा 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ रहा हूं हाईकोर्ट का। एडमिटेडली इन द प्रेजेंट केस द असेसी रिस्पोंडेंट इज ए नॉन रेजिडेंट इंडियन and his source of income in India being from interest on bank accounts and interest on income tax refund, he is not obliged to maintain books. It appears to us prima facie that the expression if any specifically used in 69A amplifies that where books of accounts are not maintained, it would not be possible to invoke this provision. अब कुछ लोगों को बड़ी इस बात पे आपत्ति हो सकती है, मतलब कुछ लोग जैसे मैं भी अपनी, अगर मैं भूल जाऊं कि मुझे हर्ष वशेश्वर चड्डा पढ़ा है, तो मैं तो खिमानी जी ये कहूंगा ये सेक्शन, ये जजमेंट गलत है या ये पोजीशन गलत है, क्योंकि ये तो 69A तो लगना चाहिए जहां बुक्स ना हो। तो मेरा इसमें कैच पॉइंट ये है, जो मैं समझ पाया दोनों ITT के ऑर्डरों को और हाईकोर्ट के ऑर्डरों को, इसलिए मैंने दोनों पढ़े ध्यान से,
और जो मैं बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूँ कि अगर एक एसएससी हमारे पास इंडिविजुअल है अग्रवाल साहब, जिसको 44AA रूल 6 में, जिसके पास बिजनेस इनकम ही नहीं है और उसको खाते रखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं, उस पर 69 नहीं लगा पाएंगे आप, और उस पर 271A की फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री भी नहीं लगा। हर्ष वशेश्वर चड्डा का तो भी कलर पता चलेगा, चलो इसको नजर ना लगे। आजकल हमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से स्टे कर देता है ऐसे फैसले। छोटा सा केस बता देता हूँ। मेरे पास एक अपील आई जिसमें नहीं, आपको खिवानी जी ये जजमेंट का पॉइंट कैसा लगा? इफ एनी बहुत बढ़िया। ये मैंने पढ़ा हुआ, पूरा जजमेंट पढ़ा हुआ, वंडरफुल पॉइंट। उसमें उन्होंने इनकम डिक्लेयर किया प्रिजम्पटिव टैक्स 44A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोगस का उसमें इशू साथ में है। एडिशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 68। तो मैंने ये अपील लिया वो कि तो और भी, सॉरी, वो तो और भी ज्यादा वल्नरेबल होगा, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सॉरी आपकी बात, 68 में तो लिखा है बुक्स मेंटेन, 68 में तो ज्यादा जरूरत है बुक्स की, पर यहाँ तो हर्ष वशेश्वर चड्ढा में उन्होंने 69A में बुक्स कह दिया। तो ऐसे ऐसे साधारण अपील है जिसमें एफडीआर इंटरेस्ट इनकम है या प्रॉपर्टी इनकम है, और ये अब लॉन्ग टर्म अग्रवाल साहब इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ये था कि इसमें 115 बीबी की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये जजमेंट्स इसलिए सारे बताए गए, तपेश त्यागी, गुजरात हाईकोर्ट, गोविंद लुला, ये सब सारे जजमेंट, हर्ष वशेश्वर चड्डा, ये सारे इसलिए बताया गया कि हम 115 बीबी से जनाब बाहर कैसे निकले। मेरा सेमिनार तो सर खत्म हो गया, बाकी बिहारी की राम जी की कृपा से 7 बज भी चुके हैं, और मैं यही कहूंगा कि जितनी ज्यादा राम जी की कृपा हम सब पे हो सके सर, ये नया साल चालू हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, तो हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये इंसिडेंट भी है। और हम ठीक है, वी रीड द, एवरीबॉडी हैज इट्स ओन वे ऑफ रीडिंग द लॉ, एनीहाउ आई ट्राई माय बेस्ट सर, आई ब्रिंग समथिंग इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट टू रेलेवेंट। हालांकि 2 घंटे कई बार कम पड़ जाते हैं राजेश भाई, आज भी देखो आप 2 घंटे मेरे पास अभी मेरा हाँ आधा पन्ना मेरा रह गया यार, मैं अगली बार क्या करूँ। ये तो नॉन स्टॉप है 2 घंटे सर आपके, हाँ, नॉन अभी स्टॉप मेरा है हो ये। वही मैंने पहले 2 पन्ने लिखे थे अभी चालू होने से पहले 5 मिनट में, वो 2 पन्ने, आधा पन्ना हुआ, आधा नहीं हुआ सर। सर इनफैक्ट क्या है, आपकी कैपेसिटी तो बहुत है लेकिन हमारे मेंबर्स की नहीं है ना, मेंबर्स तो 2 घंटे से ज्यादा सुन ही नहीं पाते। वो नहीं कहते हैं भाई साहब बस 2 घंटे ही रखा करो, हम तो तैयार हैं सुनने के लिए। तो एनीवे सर, कपिल भाई। वो राजेश भाई, वो भगवान रामचरितमानस में एक है ना, बहुविधि संता, वो कौन सी चौपाई है रामचरितमानस की, कि जिसमें कहा गया है कि जितना ज्यादा हम, जैसे रामचरितमानस में कहीं आया है कि सब कुछ राम की कथा में बार बार, जितना अभी बार आप बोलते जाते हैं, तो हमारे लिए तो जी इनका जी एक हमारे लिए राम कथा की तरह है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर, सर रिक्वेस्ट टू खवानी साहब प्लीज, और कोई ओवर क्वेश्चन टू यू। है? कोई हाथ खड़ा कर रहा था, तो कोई क्वेश्चन है तो आप ले लीजिए अग्रवाल साहब प्लीज। नहीं, किसी ने हाथ खड़ा तो नहीं किया, किसी ने भी भाई साहब, कोई नहीं है। खिवानी साहब प्लीज। खन्ना जी रेज हैंड, खन्ना जी कौन है, देखो इनको बुला लो सर, कौन है, खन्ना क्योंकि जी कपिल जी इतना ग्रिपिंग अपना सेशन बना देते हैं कि आदमी को होश नहीं रह जाती, सिर्फ इन्हीं में गुम हो जाते हैं। कपिल जी ये कभी कभी आपको करते रहना चाहिए यार, ये तो धनबाग राजेश जी के आपसे मिलवा देते हैं, वरना मजा बड़ा आ जाता है। पता है आपको, और मैं एक बात इसी भाव पे बोल रहा हूँ किमानी जी, कि मेरे से आज एक मेरे दोस्त आए थे, मनोज जैन जी एक, और राजीव जैन जी मेरठ से, वहां से बुलंदशहर से, तो मैंने उनको बोला कि देखो भैया, मेरे पास अब अग्रवाल साहब के चैनल के अलावा इंपॉर्टेंट जगह कोई बोलने के लिए नहीं है, और आजकल उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर रखा है अभी, मैं ऑप्शन में हूँ उनके, मेरे को हर एक आदमी का अडॉप्ट करता है, कर पाएगा, मैं तो इतना मेरा गुण भी नहीं है, तो राजेश भाई की ग्रेटनेस है, तो इसलिए ये बात है सर, मैं तो यही बोलता हूँ, मैं बोल दिया लोगों को सर, कि जिसको भी मुझे सुनना है भाई यहाँ आ जाओ राजेश भाई। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा। आज का सब्जेक्ट भी अच्छा रहा, और बड़ी इलेबोरेटली डिस्कस भी हुआ, और बहुत नॉलेज गेन हुई है इसके अंदर। काफी सारी चीजें बड़ी फाइन पॉइंट्स में गई हैं, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। एंड कपिल यू रीड इट वेरी वेल, इट इज हाईली अप्रिशिएबल। तो काइंड ऑफ A lot of thanks to you, and keep doing it. एंड I कीप will. ब्लेसिंग्स ऑन मी सर, आप सब। कपिल Thank भाई you बहुत for. सारे पॉइंट तो आपने ऐसे उठाए जो कि हमें पता ही नहीं थे, नहीं, और मुझे भी नहीं पता होते सके बारे में, बहुत सारी तो मैं ही कोई। कई पॉइंट आपने ऐसे बताए सर, बहुत अच्छा रहा। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई बहुत सारी चीजों। हाँ, कंसेप्ट बहुत सी क्लियर हो। Accept किया पर कि ये जो क्या है, final चेतना विद ऑल ड्यू, एक और चीज मैं बोल रहा हूँ अपने लिए कि नहीं, वो बात हम जब से पढ़ते हैं ना, एक भाव और आना चाहिए, ये सब वर्क इन प्रोग्रेस है, ये कोई फिनिश Yes. प्रोडक्ट नहीं है, सब ये वर्क इन प्रोग्रेस मिशन में है हम, मोड में, और हम इस, हमारा काम है कि हम किसी तरीके से और अच्छी चीजें इवॉल्व करते रहे, हम अगली बार मिले तो और बेटर तरीके से मिले।
ये देखिए आपका सर, process- एक मेंबर ने लिखा है, इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। कपिल भाई, यू आर गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी गॉड फॉर अस। अरे नहीं हाँ, साहब, ऐसा नहीं, ये तो आपकी ग्रेट। बिल्कुल देखिए बिल्कुल सर, ठीक और सबके आए भी रहे हैं सर, देखिए आप देख रहे होंगे चैट बॉक्स में लोगों हाँ, के कमेंट्स आ भी रहे हैं सर। नहीं, मेरे को चैलेंज ये लग रहा था अपने साथ कि मैंने जो पिछले हफ्ते बोला अब उससे बेटर कैसे करूं। नहीं, आपका चैलेंज करें ना करें, आपका हर सेशन बेटर ही होता है। हर बार Yes. इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाती है उसके अंदर। Yes, yes, definitely. थैंक यू सर, Exhaustive. थैंक यू सर, थैंक यू सर, Totally थैंक यू विश यू सो अ वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर एंड जय श्री राम। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल Thank ऑफ you. यू। Jai Thank Jai you. Shri Thank Ram. you very much. Thank you. जय गॉड श्री ब्लेस राम। यू, Jai Shri Ram. गॉड ब्लेस यू। ठीक है, Jai थैंक Shri यू। Ram.